It gives me immense pleasure to extend a very warm welcome to all on behalf of the Commerce Association, Department of Commerce, Shahid Bhagat Singh College, which has clubbed us together on a digital platform for the fourth edition of our webinar series by the Association on Understanding Factor Analysis using SPSS. The Commerce Association extends the heartiest welcome to our Honorable Principal, Dr. Anil Sardana, Teacher in Charge, Dr. Kalpana Gupta, our convener, Ms. Aarti Saini, our session moderator, Ms. Chandini Aswal, and our very eminent speaker, Dr. Arun Kumar Atri. Before we begin the webinar, I, Anwar Ibrahim from the Commerce Association, would like to request our Honorable Principal, Dr. Anil Sardana sir, to share his vision. Dr. Kalpana Gupta, teacher in charge, my contemporary. Dr. Arunatri, the star speaker for the today. Our academic council member, and who is a good standing committee member and many other things. Aarti Saini, convener of Commerce Association, who has brought this change and has taken the initiative with the help of my very, very dear students who have organized various webinars and set the tone for future programs. I'm sure other students will definitely take the torch from you people and will bring in better changes in the delivery system as well as provision of various facilities with regard to uplifting the quality of the education to the students. Well, today's webinar is very crucial, very important from the modern day, present day, because research is the main focal point as far as career is concerned. I said that either you publish or you perish. Sometime you might publish and then perish. So if you don't want to perish when you publish, it means the quality of the publication has to be good. In that, when we talk about the quality of the good publication, we talk about good research supported by good data and supported by good analysis. Then only the good report can come and it can become a good document which will be referred and cited by different people. Not only your name will go forward, but definitely it will be your contribution in the field of research. I'm very happy that our department is organizing these functions. I'd like to emphasize that now the time has come, because I can see many of my department people, Department of Commerce people are attending this. The time has come to, to evolve a, methodology that how the quality of education can be improved through online methods. Because I believe and perceive that in the coming 6 months, 1 year, or maybe after that, online technology is definitely going to stay here, and we will have to find out different ways of sharing the information with the students so that they can gain. There are methods, email, SMS, WhatsApp, but they are actually now old methods. When we are talking about the method, we need to talk about WebEx, we need to talk about Meet, and then again in the through Google Suite, there are various ways of presentation, because I have been of different schools and different institutions recently. We should also work on that, even if we have to call some expert to organize a workshop. Learning at any age is good, without not coming in between your speaker, because I know it's a difficult topic and more time to explain and train you. I would not like to speak much on this, and my best wishes to the Commerce Association, and particularly to Dr. Kalpana Gupta, who has really worked very hard, because it's very challenging. 60% of the students are commerce students, and the department strength is also very big, and she has worked very challenging period, and she has done it very successfully. My thanks to you, Dr. Kalpana Gupta, as well as to Aarti. So welcome our speaker, Dr. Arunatri, and other teachers of the department.
are participating in this. I am delighted to read your name or say who will be. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words and ending on a very positive note. Now, I would request our esteemed teacher in charge, Dr. Kalpana Gupta, to address the gathering. The principal, sir, Dr. Sadhana, the Commerce Association convener, Arti Saini, and I am able to see Dr. Saklani also and the other teachers of the department. On behalf of the Department of Commerce, I welcome you all to this fourth webinar on the research analysis. So, the Commerce Association convener Arti Saini has taken such a big initiative, and she has organized this series in which we are having this research method analysis. And Arun Atri is a very perfect speaker, and he is there to speak to you on this understanding factor analysis using SPSS. So I welcome Dr. Arun Atri for this webinar. And now I'm not coming on in between the webinar, Arun Atri and you. I pass it on to the students for this purpose. I hope that this lecture or this will also be a very good lecture, and you will learn a lot like earlier lectures also. Thank you very much. Well, thank you so much for your kind words, ma'am. Let me now introduce you all to our speaker, Dr. Arun Kumar Atri. Dr. Arun Kumar Atri is an assistant professor in Department of Commerce at Shahid Bhagat Singh College, University of Delhi. He has done his PhD from Delhi School of Economics, Department of Commerce, University of Delhi, and LLB from Faculty of Law, University of Delhi. With a vast experience of administration, he also got selected as PCS officer in UP Civil Services Exam 2009. Dr. Atri have published widely in national and international journals of repute. We welcome you, sir, to the webinar. Now, before we begin with the webinar, I request all participants to please ensure that your microphone and video are turned off during the webinar. We also request you to refrain from typing anything in the chat box. Also note that we will be having a question and answer session after the lecture. Please share your questions in the chat box. I would now request Dr. Arun Kumar Atri to share his insights on the topic. Well, I would like to thank Ms. Arti Saini, Commerce Association, our principal, sir, Dr. Sadhana, and our teacher in charge, Dr. Kalpana, for organizing this webinar on this topic. Though everybody, is associated with research, so factor analysis is something which is very popular, and people used to, in the research papers on their thesis, either you have done it or you will be using it. So I think that many teachers, when they go to face the interview also, so they maybe pose some questions by the experts. And in fact, those who have appeared in the interview, they might have been, they might have experienced this thing that people ask what are the eigenvalues, what are commonalities. So basically, today I would like to focus on the interpretation part of that. What actually these concepts are. So in whatever time I am able to do that, I would like to just touch the basics. I'm just assuming that everybody is a beginner. Ask them to send an email, a file, SAQ file. That is the SPSS file, just so that I would try, though it is not an FTP, but still I would try to, if you can have some experience on hand, you can download it and you can see that how simultaneously how much we are successful in that. We'll see later on. So if you are able to download that file from your email, that's fine. Otherwise, I have attached that file here also in the chat box. That is SAQ1, SAQ8, that file is there. That is SPSS anxiety questionnaire, SAQ is there. That file you can download. I also expect that you have already SPSS software in your computers.
or laptops. If you have not downloaded that, then you can just see the, I will be sharing the screen, and then you can just see it, you know, how you will proceed with that if later on you download it. So I would be using English and Hindi just to communicate and to make you understand, right? So let's begin with this without wasting much time. So what basically you understand that what is factor analysis, why we need it. Now, you need to understand that factor analysis is basically a data reduction technique. When we talk about this data reduction technique, what we understand? See, there are so many concepts, there are so many aspects which are uncaptured, which we cannot observe straight away or directly. For example, if I say burnout, I want to capture burnout. So can I capture burnout directly? There may be some factors. There may be some variables underlying, like one does not like to work after he has worked for quite some time on a project. He may lose interest in that. He may not like to. He will not feel motivated. So all these variables can club and can make a factor which is burnout. So the purpose of the factor analysis is that there are so many variables, and if we are able to extract a factor from those variables, like if there are 10 variables, if we can get 2 factors out of that, this is called data reduction technique, that there were 10 variables and we are able to get 2 factors out of that. So the factor that we are extracting, that is called as a latent variable, which is unobserved, जो हम directly observe नहीं कर सकते. So for example, here I am taking an example of what Andy Field has taken, SPSS anxiety. Now this SPSS anxiety is what? Now this anxiety may be because of many reasons. So this SPSS anxiety becomes a latent variable or the factor which we intend to capture. Now this anxiety is maybe because of somebody is weak in statistics, or he doesn't like how to operate the computers, or he is not good in mathematics, or there could be many reasons. Now all these reasons, they become the items or the variables. Now one thing you need to remember, you have to very carefully listen to me, that items and variables, I will be using them interchangeably. Now items are what? You might have seen that when the questionnaires are framed, the items are made, statements are made. Now those items, those statements, I am taking them as items or the variables. Those variables, they are trying to capture a factor. Now I am basically trying to find out. Now you can see that I am trying to capture this SPSS anxiety, which I cannot capture directly. So I would like to capture it indirectly through these variables. So there are different variables which are the different facets or different dimensions of one aspect, that is SPSS anxiety. Now this one thing at this point of time, now what I will be doing, now all of you, I will be doing some exercise also, that I am going very slowly, so that since everyone is able to understand, and once I am covered with a significant portion, I will be posting some questions, right? Quiz. You'll have a quiz and you can write your answer. If you know that, if you can write the answers in the chat box, right? So at this point of time, what we have understood is that there are many variables, there are many items, there are many facets, and there may be few factors which we want to capture, or there are certain concepts which we want to capture. Now these concepts are underlying under so many variables or items. So here I am taking the example of SPSS anxiety.
I want to capture that SPSS anxiety. This SPSS anxiety will be termed as latent variables. So at this point of time, you understand the latent variables, the factor, or what I am capturing, the concept which I am capturing are the same. They are, that is SPSS anxiety, and the items or the variables or the statements of the questionnaire are same, right? Now these statements are basically different aspects like computer literacy, disliking of mathematics, disliking of statistics. These are different facets of someone, how someone may not be interested in statistics, or he may have anxiety as the outcome of that. Now, one thing we need to understand about the factor analysis is whether we go for EFA or we go for CFA. This is quite common. We hear exploratory factor analysis or confirmatory factor analysis. Now, exploratory factor analysis, as the term says, you explore. Researcher is trying to find out, exploring factors which are underlying some variables or items. So exploratory factor analysis is done in SPSS. Confirmatory factor analysis, on the other hand, is basically you already have a research in hand, or for example, you know what SPSS anxiety is. In a previous study, it has been established that SPSS anxiety is comprising of disliking of statistics, mathematics, or computer literacy. These are the variables which in a previous research they have already established it, that all these variables, they contribute to the factor SPSS anxiety. Now if I want to test it again, I have already variables in hand, I have a factor in hand, I would just test it and I will run it on CFA, confirmatory factor analysis. That is confirmatory factor analysis. So what you understand is that when you are trying to explore or finding out a completely new concept on which you don't feel that the exact similar studies have been there, or you have no idea that what are those variables which make up that construct or that concept or factor, you go for exploratory factor analysis. If you already have a research in hand and you have an idea that what are the variables which capture, you go for confirmatory factor analysis. Basically, people do both. They first run the exploratory factor analysis in SPSS, and then they use that and confirm in confirmatory factor analysis. But what you need to understand is, though EFA is run in SPSS, CFA is not run in SPSS. For CFA, you need to have a separate or another some softwares like Amos, Liserel, or EQS. Now you can see this. This is what happens in CFA, in Amos. This SPSS anxiety, you don't know, but these are the items in your questionnaire. Suppose 8 items were there in the questionnaire, that I am taking some standard, already a questionnaire which ND Field has taken. So I am taking that, and the file that I have sent to you is that only. So these are suppose 8 items. These 8 items are, I am also saying these are 8 variables, and these 8 variables are trying to capture SPSS anxiety. Now this CFA can do, right? The CFA can do, and it can also convey how much this SPSS anxiety explain these items. Now another important thing that you need to understand, I will be using in my further presentation the word variance. Word variance. I will be saying that how much variance is explained. Now what is this variance? This variance is basically the power of explaining that. Now for example, if 8 items या 8 item मिलके SPSS anxiety को बना रहे हैं, तो SPSS anxiety basically explain कर रही है उस variance को उस item में, कि suppose statistics makes me cry. This is one item. Item number 1 is statistics makes me cry.
Now, how much SPSS anxiety explains that? Or put it alternatively, वो कितना contribute कर रही है SPSS anxiety को? तो ये कितना variance explain होगा ये हम आगे देखेंगे. तो variance explained, you need not to get confused with the variance, the standard deviation वाला, वो confuse होने की जरूरत नहीं है उससे अभी statistically. But here you need to see that वो कितना contribute कर रहा है and how much SPSS anxiety is explaining that item. क्या ये आठों आइटम मिलके ही SPSS, अभी एक बात समझिए कि क्या ये 8 आइटम और 8 वेरिएबल जो हमने अपने क्वेश्चनर में लिए थे, क्या यही मिलके SPSS एंजाइटी को बनाते हैं या कुछ और भी है, उसके बारे में हम बाद में. Now, factor capturing that I do. Now a researcher will conduct a survey through a questionnaire to know whether the items in the survey have similar pattern of responses. अब ये बड़ी important बात है कि why is it like कि हम factor analysis क्यों run करते हैं? Factor analysis करेगा क्या? What factor analysis will do? These items में वो ऐसा क्या है कि वो factor बना लेगा? ये जो statements हैं, ये क्या करती क्या हैं जो एक factor को बना लेती हैं? You see that when you make a statement, you basically जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो एक अलग अलग रेस्पॉन्सेज आप डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सेज लेते हैं लाइकर्ट स्केल पे. जैसे स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई, डू यू स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और स्ट्रांगली एग्री, इस पे आप रेस्पॉन्स लेते हैं. अब ये स्टैटिस्टिक्स, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेस्पॉन्स देन यू हैव अनदर क्वेश्चन, अनदर स्टेटमेंट that I dislike statistics, I don't like statistics. How the people respond to that? अब उसमें क्या लोग response दे रहे हैं? अब इनका correlation basically decide करेगा whether these items are correlated or not. अब देखिए कि जब आप एक चीज देखिए क्वेश्चन पे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि statistics makes me cry, तो वो एक बंदा वो मारेगा agree या strongly agree. I do not like statistics. अब ये related है चीजें, statements related है, तो वो ऐसा नहीं करेगा कि I statistics makes me cry strongly agree और I do not like statistics वो totally disagree कर जाएगा, वो भी उससे agree करेगा, क्योंकि ये अब this is what the correlation is looked by these items. So the question is, do these items hang together to capture or create a construct SPSS anxiety? In other words, do all these items actually measure what we call SPSS anxiety? तो सबसे important चीज आती है correlation, कि क्या इन items में वो correlation है जो एक factor को बनाता है. अगर वो correlation होगा तो वो इकट्ठे हो जाएंगे. If these items have the correlation, वो इकट्ठे हो जाएंगे. अब हम आगे बात करेंगे कि if they have a very high correlation, what will be the problem? And if they have very less correlation, then what is the problem? तो SPSS सब जानते हैं कि this is a statistical package for social sciences which helps in extracting these factors underlying the variables. जो variables मतलब मैं items बोल रहा हूँ, और factors जो मैं unobserved है. तो variables observed है, observed इसलिए कि मैं statements पूछता हूँ, capture करता हूँ उनको, items पूछता हूँ, and they help in constructing a factor. सबसे पहले लेकिन हम करते क्या हैं? फर्स्ट स्टेप बिफोर अप्लाइंग फैक्टर एनालिसिस या किसी भी हम थ्योरी में, मतलब जब भी कोई रिसर्च में वी डू दैट, वी चेक द डेटा एडिक्वेसी. अगर आपका डेटा एडिक्वेट नहीं है तो फैक्टर एनालिसिस अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा. और इसके लिए हमारे पास बेसिकली केएमओ टेस्ट होता है, काइजर मेयर ऑल्किन टेस्ट, व्हिच वी अप्लाई. एंड देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि कब जितने भी लोग रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है रिपोर्टिंग. इट डज नॉट मैटर कि किसी ने वही काम पहले किया हुआ है या कैसा किया हुआ है. यू कैन डू दैट. in fact in western nations you see that research, if it is done, अगर वही मैंने क्वेश्चनर अप्लाई किया आज, मैंने वही रिसर्च किया आज, अगर मैं 2 साल बाद या 4 साल बाद करता हूँ, उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है कि भाई ये इसी क्वेश्चनर ने इस चीज में दोबारा से कैप्चर की. तो ऐसा कुछ नहीं होता रिसर्च में कि किसी ने एक काम कर लिया तो वो दोबारा नहीं कर सकते. आप कर सकते हो बट वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्लेजरिज्म इश्यूज है.
तो सबसे पहले जो हम डेटा एडिक्वेसी चेक करते हैं, डेटा एडिक्वेसी वी चेक थ्रू KMO दिस नाउ एज। अच्छा, वन मोर थिंग दैट आई वाज टेलिंग है, इसकी लिटरेचर सपोर्ट होना बड़ा जरूरी है। जब मैं लिटरेचर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी लिखेंगे अपने मन से नहीं लिख सकते कि भैया मैंने KMO टेस्ट किया और KMO जो है वो 0.6 से ज्यादा आया तो मैंने मान लिया कि डेटा एडिक्वेट है। आपको कैसे पता चला कि KMO 0.6 से ज्यादा है तो डेटा एडिक्वेट है? यू नीड टू हैव ए लिटरेचर सपोर्ट। लिटरेचर सपोर्ट का मतलब है कि किस स्टडी में, इन विच स्टडी दिस हैज बीन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू ऑफ 0.6 इज सजेस्टेड एज मिनिमम, इट मींस जो हमने टेस्ट रन करेंगे SPSS में, KMO वैल्यू आएगी डेटा एडिक्वेसी की, एंड इफ इट कम्स 0.6 वी से इट इज सफिशिएंट। हमारा जो रिस्पॉन्सेज हैं दे आर एनफ। नाउ दिस इज एज पर, दिस इज यूजुअली टबैकनिक एंड फिडल की एक स्टडी है जिसमें ये सजेस्ट किया उन्होंने कि 0.6 से ज्यादा होना, 6.6 एंड अबव इज एक्सेप्टेबल। सो वी गो बाय दैट स्टैंडर्ड, सो दिस बिकम्स अ स्टैंडर्ड। अब कल को कोई ऐसी स्टडी आ जाए, यू कैन ऑल्सो डू दैट, कि विच सेज दैट 0.5 वाला भी सफिशिएंट है, तो वी कैन हैव इन सम केसेस वी डू दैट ऑल्सो, राइट? But here largely in social sciences we go by 0.6 and above as a general standard. Now Bartlett test of sphericity जब आप ये रन करेंगे KMO तो वो ऑटोमेटिकली इसको साथ में देता है रिजल्ट को। ये है क्या? Bartlett test of sphericity बेसिकली वो एक नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। देखिए एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक अलग पार्ट है, वो आज हम नहीं डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एक, कुछ टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं वो इनहेरेंट होती है, उनमें नल हाइपोथेसिस इनहेरेंट होती है। तो यहाँ पे एक नल हाइपोथेसिस इनहेरेंट है इस टेस्ट में कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सेम है कोरिलेशन मैट्रिक्स की ना। कोरिलेशन, अब उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपने मैट्रिक्स 12th क्लास में मैथ्स पढ़ा है तो डायगोनल जो है 1 1 1 होता है। अगर आप कोरिलेशन भी देखेंगे तो 1 1 होता है। 1 1 क्यों आता है? कि पहला आइटम, यही आइटम रोज में लगते हैं, वही जो है वो कॉलम्स में लगते हैं, तो पहले का पहले से पूरा कोरिलेशन होता है, दूसरे का दूसरे से होगा, तीसरे का तीसरे से पूरा कोरिलेशन होगा, क्योंकि वही आइटम्स हैं, तो वो डायगोनल 1 बन जाता है। अब डायगोनल 1 बन जाता है और डायगोनल के उधर और डायगोनल के इधर कुछ कोरिलेशन होगा ना उन आपस में आइटम्स में। क्या वो कोरिलेशन 0 है? नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस अज्यूम करती है कि उनका कोरिलेशन जो ऑफ डायगोनल्स हैं उनका 0 है। Since it is not 0, we reject that null hypothesis and we say that correlation उनका 0 नहीं है। बाकी आइटम्स का अगर देखिए कोरिलेशन 0 हो गया तो फैक्टर ही नहीं निकलेगा। मतलब आइटम्स को हैंग टुगेदर की जब हम बात करते हैं तो कुछ तो कोरिलेशन होना चाहिए ना। तो ये बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्पेरिसिटी अज्यूम करती है, इनहेरेंट हाइपोथेसिस अज्यूम करती है कि भैया वो उनका 0 है कोरिलेशन। तो जब भी लेस देन 0.05 आता है हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देते हैं उस नल हाइपोथेसिस को। तो मोस्टली आप देखना इसमें वो रिजेक्ट ही होगी, 0.000 ही आएगी। अगर ऐसा आ गया किसी रेयर केस में आ गया तो मतलब वो बिल्कुल ही कोरिलेशन 0 है, तो मतलब वो डेटा, वो आइटम्स बनेंगे नहीं, वो फैक्टर नहीं बनेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज वी चेक। नाउ द क्वेश्चन इज how much you can see this the data is sufficient responses. Usually above 300 it is considered as sufficient. अगर आपका 300 से ऊपर है तो आपकी KMO 0.6 से ऊपर, 0.6 से above आनी चाहिए, ठीक है? तो किसी भी रिसर्च में आप 300 से 1000 से ऊपर लेके तो मतलब एक्सीलेंट होता है। 300 से ऊपर लेके जाएंगे तो इट इज ऑलवेज बेटर। जितना ज्यादा बढ़ते जाएंगे, मतलब एक पॉपुलेशन होता है उसका एक सैंपल उठाते हैं, जितना ज्यादा करते जाएंगे उतना अच्छा है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डू। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग? अब हमने देख लिया डेटा एडिक्वेट है, हमने KMO से पता चल गया। नाउ द सेकंड थिंग दैट वी नीड टू चेक बिफोर अप्लाइंग फैक्टर एनालिसिस इज द कोरिलेशन अमंग द आइटम्स। आइटम्स मतलब वही वेरिएबल्स। जैसे हमने 8 आइटम्स लिए SPSS एंजाइटी को कैप्चर करने के लिए, तो क्या इन 8 आइटम्स में कुछ कोरिलेशन है? ये जो कोरिलेशन है इट शुड बी मॉडरेट, दैट इज इट शुड नीदर बी टू लो नॉर टू हाई। लो कोरिलेशन का मतलब ये है कि ये इनका कोई रिलेशन नहीं आपस में, तो इसका मतलब ये कैसे बना देंगे एक फैक्टर को? आप सोचिए, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो हम कैसे साथ आ सकते हैं? हम नहीं आ सकते। तो सेम वो आइटम्स हैं कि उन आइटम्स की कुछ सोच तो मिलनी चाहिए साथ में, तो दीज आइटम्स शुड हैव सम
some correlation among them so that they can make a factor. So we need to see it that there should be some correlation. Now if there is a very high correlation, अगर बहुत ज्यादा correlation है, इतना ज्यादा correlation है कि आप भी वही बात कह रहे हैं और मैं भी वही बात कह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम हो जाती है multicollinearity. Now multicollinearity आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, if I try to make you understand in a very simple language, कि आप भी वही बात कह रहे हैं, मैं भी वही बात कह रहा हूं, तो भैया फिर आप क्यों कह रहे हो, मेरे को ही कहने दो. तो इसका मतलब मेरे दो आइटम्स हैं, if I have two items, they are trying to communicate the same thing. I am honest, right? I am not dishonest. ये स्टेटमेंट सेम ही है. जो रेस्पॉन्स बंदा मारेगा स्ट्रांगली एग्री वही मारेगा इस पे. तो सब लोग जब ऐसा समझेंगे तो इनका कोरिलेशन बहुत ही ज्यादा हाई आएगा. इसका मतलब ये है कि क्या हमारे इस कोरिलेशन में, हमारे इसमें क्या हमारे को उन आइटम्स की जरूरत थी, दो की बजाय एक ही बहुत था. आपकी जरूरत क्या थी, जब आप इतना ज्यादा कोरिलेशन है तो मल्टीकोलिनियरिटी कैन इट जस्ट सी दैट इट इज बेसिकली यू आर अननेसेसरली में आपने लोग इकट्ठे कर रखे हैं. थोड़ा कोरिलेशन मॉडरेट होना चाहिए. बिल्कुल कम होगा तो वो फैक्टर नहीं बनाएंगे, ज्यादा होगा तो वो फैक्टर तो बनाएंगे, लेकिन वो एक ही बात बोल रहे हैं. तो ऐसा ना हो कहीं कि वो एक ही वेरिएबल एक ही फैक्टर को या दो वेरिएबल ही फैक्टर को बना दे. आपने 5 दिखा रखे लेकिन 2 का भी वही फैक्टर बनेगा और 5 से भी वही बन रहा है, तो 3 फालतू के हैं. Got it? Now this is the second step. Now we come to this our questionnaire which I have sent to you. Now SPSS anxiety questionnaire which Andy Field has taken a sample. I have taken this. SAQ means SPSS anxiety questionnaire. 8 means 8 items are there. So these items are, now what are these questions? What are these items in this questionnaire? So although there was a questionnaire of 23 items, I have taken first 8. Now statistics makes me cry. My friends will think I am stupid for not being able to cope with SPSS. Standard deviations excite me. Now some statements can be negatively framed so that कई बार क्या होता है, लोग ना मारते रहते हैं एकदम agree, तो पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पंगा पड़ा, कि उसने सबको एग्री कर दिया तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया. तो किसी को स्टैंडर्ड डेविएशंस कैसे एक्साइट कर सकती हैं? अगर उसको स्टैटिस्टिक्स उसको रोना दिलाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन उसको कैसे एक्साइट कर सकती है? I dream that Pearson is attacking me with correlation coefficient. ये सारा डराने वाला खेल है स्टैट से. I don't understand statistics. I have little experience with computers. All computers hate me, or I do not like the computers. I have never been good at mathematics. So all these 8 items, now there should be some correlation. Then only they will be able to form the SPSS anxiety, that concept or that factor, right? So they should have some correlation. So what we will do, we will check the correlation. तो सबसे पहले हम कोरिलेशन हम चेक करेंगे. अब देखिए ये कोरिलेशन जो है ये इस तरह से आएगा. अब ये देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई. अब ये पहला वाला आप हॉरिजॉन्टली देखिए रो में, स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई हॉरिजॉन्टली, और यही वर्टिकली भी है. तो इस वाले वेरिएबल का इस स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई का अपने आप से तो पूरा परफेक्ट कोरिलेशन है क्योंकि वही है ये. इसी तरीके से सेकंड वाले का सेकंड से 1 है तो डायगोनल हमारा 1 हो गया. जो मैं बात कर रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वो ये थी कि वो डायगोनली 1 होता है, और 1 से इधर जो होता है 0 होता है और 1 से उधर 0 होता है. वो अज्यूम करता है बार्टलेट टेस्ट जो स्फेरिसिटी है, जबकि ऐसा नहीं है. इसीलिए वो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होके उसमें सिग्निफिकेंस लेवल जो है लेस देन 0.05 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोरिलेशन आ रहा है. अब ये देखिए पहले का दूसरे से क्या कोरिलेशन है. My friends will think I am stupid for not being able to cope with SPSS. Statistics makes me cry का -0.99 है, लो कोरिलेशन है. ऐसे ही देखेंगे आप सबका सबसे कोरिलेशन आप देख सकते हैं. मैं आपको दिखाता हूं कि हम कोरिलेशन कैसे रन करते हैं SPSS में. सबसे पहले आप अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए, खुद करना चाहते हैं साथ में तो वो भी कर सकते हैं. देखिए मैं सबसे पहले SPSS में गया.
taking some time. It's opening. अब देखिए मैं इसमें ओपन करता हूँ वो डेटा फाइल, ये ऊपर देखिए मेन्यू आ रहा है, नीचे डेटा व्यू, वेरिएबल व्यू, ये मेरे SPSS फाइल खुल गई है। अब मैं इसमें ओपन करूँगा, देखिए डेटा फाइल, और मैंने जो वो फाइल भेजी है वो मैंने अपने डेस्कटॉप पे डाली हुई है SAQ8 नाम से, और मैंने इसको ओपन कर दिया तो ये खुल गई। तो देखिए वेरिएबल व्यू में ये 8 क्वेश्चंस हैं। अभी पहला क्वेश्चन क्या था, स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई। लोगों ने आंसर दिए हैं 1 2, देखो ये 1 2 जो 5 दिया है, 1 स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री, ये जो है 1 स्ट्रांगली एग्री, 2 एग्री, 3 नीदर आई एग्री, 4 डिसएग्री, राइट, 5 this, and this is what I have mentioned, right? Okay. Now you need not to bother about this missing and columns and all that. I have an ordinal scale. Now this is a separate part. We can have an ordinal, nominal, or let's go by this and see this variability. Now, first of all, I will analyze. In the analyze, I will go correlate. देखिए analyze बहुत important tool है इसका. Analyze जाएंगे, correlate, bivariate. अब ये देखिए 8 के 8 हैं, हमने सबका कोरिलेशन आपस में चेक करना है। तो मैं सारे सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट दबाइए, शिफ्ट दबा के एरो डाउन करिए आप, साथ में एरो जो नीचे वाला है, और इसको आप ले जाइए इधर वेरिएबल्स में। अब नीचे ये बता रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो मैंने देखा अगर मुझे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए वो भी बता देगा, लेकिन मुझे इसमें नहीं चाहिए। अब ये देखिए मैंने रन कर दिया, ये मेरा रिजल्ट्स आ गए। ये जो टेबल दिखाता है ये दोनों तरफ दिखाता है, मतलब आप देखिए डायगोनल आ रहा है, डायगोनल में आ रहा है, डायगोनल के नीचे जो है एक n भी दिखा रहा है। मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसमें n, अगर n को गायब कर दूँ मैं, तो अब ये मेरी जो पियर्सन कोरिलेशन जो आ रहा है वो ये जो मैंने टेबल, ये वाली जो टेबल है, जो मेरी इसकी टेबल है, आप देखेंगे 1 के नीचे क्या है, -0.099। तो देखो यहाँ पर 1 है, ये हमें सिर्फ पियर्सन का कोरिलेशन देखना है 1, और फिर देखिए -0.099, फिर देखिए -337, 0.436, 0.402, तो यही वैल्यूज देखिए यहाँ पर आई हुई हैं, राइट। नाउ दिस टेबल, कोरिलेशन टेबल, is giving me the correlation matrix. Now this is correlation matrix. Now one thing that you need to remember at this point of time is, what is correlation matrix? Correlation matrix gives me the correlation between the items or the variables. ठीक है जी, ये जो कोरिलेशन है आप देखिए 8 आइटम मैंने हॉरिजॉन्टली लगा दिए, 8 आइटम मैंने वर्टिकली लगा दिए, उनका आपस में कोरिलेशन देख लिया। कोरिलेशन से मुझे पता चला कि देखो ये सबसे नेगेटिवली जा रहा है, ये -3.82, और पॉजिटिवली जा रहा है हाईएस्ट 0.514। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स से मुझे ये लगता है कि हाँ यार इन लोगों इनमें कोरिलेशन है, 0.409, 0.339, सो देयर विल बी डेफिनेट। अगर बहुत ही सारों में अगर बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन पुअर जा रहा है तो इसका मतलब ये दे विल नॉट हैंग टुगेदर, दे विल नॉट मेक द कंस्ट्रक्ट। और अगर इनमें बहुत ज्यादा कोरिलेशन जा रहा है, 8.8 से भी ऊपर जा रहा है पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीकोलिनियरिटी वाला इश्यू, राइट। नाउ ये हमने कर लिया। नाउ व्हाट यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल दैट मोस्ट ऑफ द आइटम्स हैव सम कोरिलेशन ईच अदर, रेंजिंग फ्रॉम दिस R मींस कोरिलेशन -3.82 फॉर आइटम 3। अब देखिए आइटम 3 जो था वो क्या था हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशंस एक्साइट मी, एंड आइटम 7 था ऑल कंप्यूटर्स हेट मी। उन दोनों का कोरिलेशन अगर ऊपर से आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अगर लेके आओगे रोज में, देखिए ये अगर मैं लेके आता हूँ, ये देखिए 3 में स्टैंडर्ड डेविएशंस एक्साइट मी, यहाँ से लेके आया, और ऑल कंप्यूटर्स हेट मी, ये आइटम 7 है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन से ये जो एक्साइट मी, ये जो है वर्टिकली है, तो इनका -0.382 है। और ये जो है ये जो आइटम है आपका 6th आइटम है, आई हैव लिटिल एक्सपीरियंस विद कंप्यूटर्स 0.514, एंड ऑल कंप्यूटर्स 7th जो है इन दोनों का 0.514 है। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, 2R 5.514 फॉर आइटम्स दिस।
due to relatively high correlations, not extreme correlation, high correlations among this would be a good candidate for factor analysis. इसका मतलब इनमें अच्छा correlation है, तो वो इसका मतलब factor analysis अच्छे से चल सकता है. So it needs to be noted that goal of factor analysis is to model the interrelationship. मॉडल की जब हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको CFA में दिखाया था अभी कि एमॉस में वो क्या करता है, SPSS एंजाइटी और बाकी आइटम्स जो आगे वो एक मॉडल को बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्ट को बोलते हैं. कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करता है एमॉस. CFA में हम कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग करते हैं जो एस्टैब्लिश करते हैं. तो बिटवीन आइटम्स, जिस देखो मैं आइटम्स को क्या बोल रहा हूँ, आइटम्स और ऑब्जर्व्ड वेरिएबल विद फ्यूअर, मतलब कम लेटेंट वेरिएबल जिनको मैं फैक्टर्स बोल रहा हूँ. These interrelationships can be broken down into multiple components. वो हम आगे देखेंगे. अभी जो मैंने आपको बताया कि what is variance quite often used in analyzing the results of SPSS. मैं बार-बार ये word use करूंगा कि वो explain कर रहा है variance. Factor जो है, मैं बोलूंगा factor explain कर रहा है variance एक item में और variable में. How much variance a factor is explaining in a variable. वो factor कितना explain कर रहा है, वो कितना explain कर रहा है, मतलब देखो ज्यादा एक्सप्लेन करेगा मतलब वो जो आइटम है SPSS एंजाइटी स्टैटिस्टिक्स में कराए, तो ये SPSS एंजाइटी जो है ये इसको एक्सप्लेन कर रही है. एक्सप्लेन करने का मतलब है कि क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है. जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन, जब मैं बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन जो है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, जो फैक्टर है वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसको वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है आइटम का, तो मतलब ये है कि वो आइटम जो है ना बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको फैक्टर को बनाने में, एक्सट्रैक्ट करने में. तो वेरिएंस इज बेसिकली द एक्सप्लेनिंग पावर ऑफ दैट फैक्टर और कंपोनेंट. अब मैं एक बात और आने वाली है आगे कि बार बार हम फैक्टर और कंपोनेंट को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे. कहीं पे कंपोनेंट लिखा होगा, कहीं पे फैक्टर लिखा होगा. ये चक्कर क्या है, ये चक्कर भी हम आगे देखेंगे कि हम इनको क्यों इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. क्योंकि कुछ ऐसी टर्म आपने सुनी होगी, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, तो ये उससे रिलेटेड है. तो फैक्टर और कंपोनेंट दोनों एक ही बात है और इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. क्यों? बट नाम इसलिए अलग है क्योंकि मेथड्स अलग है एक्सट्रैक्शन के. सो how much variance of a variable or a item is explained by a factor or component. तो देखिए ज्यादा रिलेशन होगा, सीधी सी बात है, अगर वो ज्यादा रिलेशन होगा तो ज्यादा वो एक्सप्लेन करेगा उस आइटम को. तो अगर 8 आइटम्स हैं तो वो 8 आइटम कितना एक्सप्लेन होते हैं वो एक फैक्टर से. I think it would be difficult for me to take the questions at this. There are some people, those who are raising their hands. Let me finish it and you can note down your queries and then we will discuss in the end. Right? You can post them later in the chat box and then we will have a compilation of that and then I will answer. So, अब देखिए हमको आगे जो समझने की जरूरत है वो ये है कि पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएंस. वेरिएंस समझ आ गया. वेरिएंस मतलब कि एक जो कितना एक्सप्लेन कर रहा है, एक फैक्टर कितना एक्सप्लेन कर रहा है. अब वो वेरिएंस क्या हो सकता है? वेरिएंस जो है दो तरह के वेरिएंस है. एक है कॉमन वेरिएंस और एक है यूनिक वेरिएंस. देखिए कॉमन मतलब जो सब लोग एक साथ बात कर रहे हैं और यूनिक मतलब जो अकेला मैं अलग, वो उसमें सब बात कर रहे हैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं अलग कर रहा हूँ, यूनिक कर रहा हूँ. तो हमें ये देखना है कि जो 8 के 8 आइटम्स हैं जो हमने लिए हैं, ये जो SPSS एंजाइटी एक जो फैक्टर हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ये कितना एक्सप्लेन कर रहा है सबको. जो अब देखिए सारा मिलके SPSS एंजाइटी को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कन्वर्सली मैं बोल रहा हूँ SPSS एंजाइटी वो एक्सप्लेन कर रही है उन वेरिएबल्स को, उन आइटम्स को. तो जितना जितना वो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वेरिएंस वो कॉमन है, वो शेयर्ड वेरिएंस है. मतलब मैं एज ए फैक्टर आइटम 1 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी को ज्यादा कर रहा हूँ, किसी को कम कर रहा हूँ, लेकिन जितना मैं कर रहा हूँ वो शेयर्ड वेरिएंस है. यूनिक वेरिएंस ये है, जो यूनिक वेरिएंस में 2 सब पार्ट्स, स्पेसिफिक और एरर. देखिए कॉमन वेरिएंस में कम्युनैलिटी आती है. अब ये कम्युनैलिटी क्या है, ये अभी शुरू में अभी थोड़ा ना ये
चीजें कम्युनैलिटी, आइगन वैल्यूज ये अभी घूमेंगी, लेकिन बाद में टिल द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन दे विल बी वेरी क्लियर, क्योंकि इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसके ऊपर क्विज भी करेंगे। तो कॉमन वेरिएंस क्या है? कॉमन वेरिएंस जो मैंने बताया आपको कि भाई हम जो मिलके एक्सप्लेन कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, है ना, तो कुछ ना कुछ वो सारे आइटम्स में कुछ कॉमन है जो कि वो एक कंस्ट्रक्ट बना रहा है इसको फैक्टर एनालिसिस को, जो हमारे फैक्टर को, एसपीएसएस एंजाइटी को। इसके अलावा कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आइटम उसको कंट्रीब्यूट करके कुछ और भी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई क्या पूरी तरीके से एसपीएस के एंजाइटी को कंट्रीब्यूट करता है, या एसपीएस एंजाइटी स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई को 100% एक्सप्लेन करती है? नहीं, स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो जितना एसपीएस एंजाइटी उस स्टैटिस्टिक्स के डर की वजह से है, जितना नीचे वाले आइटम कि आई डोंट लाइक स्टैटिस्टिक्स, आई हेट कंप्यूटर्स, जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर को मैं हेट कर रहा हूँ क्यों? हो सकता है कि मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो कंप्यूटर कभी चेक करने में माउस से, या कि कहीं ऐसे कुछ सीपीयू की बॉडी से, तो मेरे को डर लगता है कंप्यूटर से, मैं आई हेट देम। सो द रीजन कुड बी दिस, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एसपीएसएस एंजाइटी। तो एसपीएसएस एंजाइटी may not be able to completely explain this, the hating of the computers. तो वो वेरिएंस जो एक्सप्लेन नहीं हुआ इस फैक्टर से, वो यूनिक वेरिएंस है उस आइटम का, उस वेरिएबल का। जो ये सारा मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे वो शेयर्ड वेरिएंस है, और उसी को शेयर्ड वेरिएंस को ही हम कम्युनैलिटी बोलते हैं। तो कम्युनैलिटी देखो, कम्युनैलिटी क्या होती है? कम्युनिटी से बना है। कम्युनिटी में क्या होता है? सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो कम्युनैलिटी जो है वो जो शेयर कर रहे हैं, हम लोग जो मिलके एक फैक्टर को बना रहे हैं, और वो फैक्टर हमारे उस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एसपीएसएस एंजाइटी स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई को कितना एक्सप्लेन कर रहा है? अब हो सकता है स्टैटिस्टिक्स की वजह से और किस वजह से रोता हो, वो जो पार्ट है वो यूनिक वेरिएंस होगा उस पर्टिकुलर आइटम का, उस वेरिएबल का वो यूनिक वेरिएंस है। अब वो यूनिक वेरिएंस स्पेसिफिक वेरिएंस भी हो सकता है और एरर वेरिएंस भी हो सकता है। एरर वेरिएंस मतलब गलती हो सकती है कि वो कोई लेना देना नहीं है उसका। यू कैन सी द स्पेसिफिक वेरिएंस इज दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर आइटम। Item 7, all computers hate me may have a variance that is attributable to anxiety about computers in addition to anxiety about SPS. भाई कंप्यूटर चलाने से ही डर लगता है, वो जरूरी थोड़ा ना। अब ये आइटम जो है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे का पूरा एसपीएसएस एंजाइटी को ही कंट्रीब्यूट कर देगा, बना देगा फैक्टर। कल को हो सकता है मैं कंप्यूटर को भी एंजाइटी को भी कैप्चर कर ले। एसपीएसएस एंजाइटी अलग है, कंप्यूटर एंजाइटी अलग है। एक तो ये है कि कंप्यूटर खोलने में डर लगता है, एक ये कंप्यूटर खोलने में डर नहीं लगता, लेकिन एसपीएसएस खोलने में डर लगता है। एसपीएसएस नहीं समझ आता, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक है एंजाइटी टुवर्ड्स स्टडीज कि पढ़ने में मन नहीं लगता, एक है कि मेरा मैथ्स पढ़ने में मन नहीं लगता। दोनों चीजों में फर्क है ना। तो जो चीज कॉमन हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमारा शेयर्ड वेरिएंस है, वो हमारी कम्युनैलिटी है। और जो हम ऐसी चीज जो इस फैक्टर को नहीं कर रहे लेकिन किसी और को करेंगे, वो हमारा यूनिक वेरिएंस है। अब उस यूनिक वेरिएंस में एक स्पेसिफिक है जो मैं किसी और को कर रहा हूं, उसमें एक एरर है। एरर ये हो सकता है, एरर कम्स फ्रॉम द मेजरमेंट्स and basically anything unexplained by the common or specific variance. For example, a person got a call from a babysitter that her 2-year-old son ate her favorite lipstick. तो वो उसको एंजाइटी हो गई। अब वो एंजाइटी एसपीएसएस की, अब वो एसपीएसएस में भी मन नहीं लग रहा उसका, तो वो एंजाइटी किस वजह से है? ना कंप्यूटर्स की वजह से है, ना वो एसपीएसएस की वजह से है। वो इस वजह से है कि उसका कोई नुकसान, या किसी बच्चे ने घर पे फोन आया जी मोबाइल तोड़ दिया, या कुछ और हो गया, तो वो एंजाइटी हो गई, वो एरर है। उस टाइम जब वो क्वेश्चन भर रहा था, वो आइटम भर रहा था, तो वो ये एरर आ गया उससे सोच के बाद। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टोटल वेरिएंस। देखिए मैंने बोला ना कि वो इसको एक्सप्लेन करता है। अब एक आइटम, ये जो एक एसपीएसएस एंजाइटी है, ये 8 आइटम्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। एक अगर वो पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन करता है, टोटल वेरिएंस 1 होगा। देखिए एक मेरा कहने का मतलब आप समझिए ध्यान से, स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई, दिस इज आइटम 1।
अब SPSS एंजाइटी कुछ पार्ट इसको एक्सप्लेन करती है। कहने का मतलब है ये आइटम कंट्रीब्यूट करता है SPSS एंजाइटी को टू सम पार्ट, कुछ किसी और को करता होगा, है ना, और कई सारे आइटम्स को करता होगा। वो यूनिक है, वो बाकियों के साथ शेयर नहीं कर रहा है, बाकी आइटम्स के साथ शेयर नहीं कर रहा है एक्सप्लेनेशन उस SPSS एंजाइटी का। तो जो वो कॉमन करेगा, जो वो कॉमन शेयर करेगा वो कॉमन है, और जो वो अलग है, जो वो किसी अलग अलग आइटम्स को करे, जो अलग अलग फैक्टर्स को करेगा किसी दूसरे क्वेश्चनेयर में, वो उसका यूनिक है। तो कहने का मतलब है कि टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट आइटम इज वन, टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट आइटम इज वन। तो अगर हम कम्युनैलिटी को, और कम्युनैलिटी हमारा क्या हो गया, कम्युनैलिटी हो गया हमारा कॉमन वेरिएंस। जो स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई, कंप्यूटर्स हेट मी, आई डू नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, ये सब लोग जो मिलके एक फैक्टर को बना रहे हैं वो कॉमन है। हो सकता है किसी और को भी बनाए। तो इसका मतलब जो SPSS एंजाइटी है वो इससे कितना एक्सप्लेनेशन कर पा रही है, पूरा नहीं। देखो वो अगर पूरा वन कर रही है, सोचो आप पूरा वन कर रही है, तो वो इसका मतलब वो आइटम किसी और स्टेटमेंट के लिए कभी किसी फैक्टर के लिए यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब 100% एक्सप्लेनेशन जो आ रहा है वो उस आइटम से आ रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि यूनिक वेरिएंस जो है ये तो मैथमेटिकल पार्ट है कि टोटल वेरिएंस हमेशा 1 होगा, कॉमन वेरिएंस एक पार्ट होगा। अगर कॉमन वेरिएंस h² है, जिसको हम मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में h² कम्युनैलिटी को रेफर करते हैं, तो जो रिमेनिंग हमारा यूनिक वेरिएंस है वो हमारा 1 - h²। अब देखिए ये होता है बेसिकली जब हम एमॉस में मॉडलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, किसी फैक्टर एनालिसिस को ले जाते हैं उसमें एमॉस में, तो ये होता है। ये बेसिकली देखिए ये बताता है कि जो SPSS एंजाइटी है, ये 8 आइटम्स को देखिए, ये एरोज देखिए कहाँ जा रहे हैं, कितना एक्सप्लेन कर रही है। यहाँ पे स्कोर्स आ जाते हैं, वो कॉमन वेरिएंस है, ये सारा कॉमन है। लेकिन ये जो आइटम है, ये देखिए पीछे देखिए, ये यूनिक है, ये किसी और चीज को भी एक्सप्लेन करते हैं, किसी और चीज से भी एक्सप्लेन होते हैं। रादर ऐसे ये किसी और चीज से भी एक्सप्लेन होते हैं, कुछ और फैक्टर्स भी होंगे। वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो होंगे कोई फैक्टर्स, तो वो स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और कुछ एरर भी हो सकते हैं। तो S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, E स्टैंड्स फॉर एरर, और ये हमारा कॉमन वेरिएंस। तो कॉमन वेरिएंस इधर से आया ग्रीन में, जो वो दैट इज शेयर्ड अमंग ऑल द आइटम्स, उसको बोलते हैं कम्युनैलिटी। और जो यूनिक वेरिएंस है, जो हर आइटम अलग अलग तरीके से किसी ना किसी को अपने वो एक्सप्लेनेशन से होते हैं, वो किसी से, दैट विल बी यूनिक वेरिएंस एंड इट कैन कंप्राइज ऑफ स्पेसिफिक एंड एरर। Now here you see that SPSS anxiety makes up the common variance for all 8 items. But within each item, there is a specific variance and error variance. Take the example of item 7, all computers hate me. Although SPSS anxiety explains some of this variance, there may be systematic factors such as technophobia. जैसे मैंने बताया ना, हो सकता है उसको टेक्नोलॉजी से डर लगता हो बंदा, they are not computer savvy people, so वो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो वो उसका यूनिक है, जो इस फैक्टर को नहीं एक्सप्लेन, इस फैक्टर से नहीं एक्सप्लेन हो रहा, वो किसी और से होगा, तो वो उसका यूनिक है। और वो यूनिक स्पेसिफिक है या एरर भी आ सकता है। अगर कोई एरर नहीं है तो सारा का सारा स्पेसिफिक ही यूनिक होगा। अब बात आती है फैक्टर एनालिसिस की। हमने ये सब देख लिया, अब हम फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करके देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जब हम फैक्टर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, हमारा गोल है क्या? जैसे मैंने बताया कि फैक्टर एनालिसिस में the goal is to reduce the number of variables to extract the factors and interpret the results. ये हमारा गोल है कि हम इतने सारे जो 8 आइटम्स मैंने फॉर एग्जांपल इसमें दिखाया, 8 आइटम्स हैं, उससे मैंने एक्सट्रैक्ट करने हैं फैक्टर्स और फिर उसको इंटरप्रेट करना है। तो दो चीजें समझ में आएंगी मुझे फैक्टर एनालिसिस में कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे करनी है। सबसे पहले मुझे करनी है फैक्टर एक्सट्रैक्शन। मुझे फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है, और फैक्टर जब एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद फैक्टर रोटेशन। Factor rotation. Now, today I am not going to discuss this factor rotation. Maybe in some other webinar, this factor rotation, orthogonal और जो oblique वाली होती है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि फैक्टर एक्सट्रैक्शन कैसे करें, मतलब इसको, ये जो हमारे जो SPSS एंजाइटी वाली बात है, इसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें।
तो फैक्टर एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स चॉइस। जब हम फैक्टर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसमें चॉइस आती है, चॉइस, मेकिंग ए चॉइस अबाउट द टाइप ऑफ मॉडल एज वेल एज द नंबर ऑफ फैक्टर्स टू एक्सट्रैक्ट। अब मैं सोच रहा हूं, मैं कुछ सोच के बैठा हूं कि यार ये एक फैक्टर एक्सट्रैक्ट करना है या दो करने हैं, चलो मैं सोचता हूं मुझे दो आ जाने चाहिए, दो फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट, तो मैं दो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूं। या ये होगा कि मुझे पता ही नहीं है कि इसमें से कितने फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं। ये जो 8 मेरे आइटम्स हैं, मैं सोच तो रहा था SPSS एंजाइटी, लेकिन हो सकता है एक से ज्यादा भी हो जाए। तो आई हैव नो आइडिया दैट हाउ मच factors can be extracted, how many factors can be extracted from these 8 items। तो फैक्टर रोटेशन तो बात की चीज है, तो मैं सबसे पहले उसके बताऊंगा आपको दो मेथड्स हैं एक्सट्रैक्शन के। एक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और एक फैक्टर एनालिसिस। देखो बड़ी अजीब सी बात है कि हम बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस हैं, लेकिन हम जब फैक्टर एनालिसिस करते हैं तो एक्चुअली में फैक्टर एनालिसिस जो होता है वो PAF, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग से होता है। और जो हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं लेकिन यूज करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट PCA मेथड है। मतलब फैक्टर को एनालाइज, फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करने के दो मेथड्स हैं। तो जब हम PCA यूज करते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस यूज करते हैं, तो हम फैक्टर को फैक्टर नहीं कहते हैं, हम फैक्टर को कंपोनेंट कहते हैं। गॉट इट? तो इसका मतलब जब मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मेथड यूज करूंगा तो जो मेरा मैट्रिक्स निकल के आएगा वो फैक्टर मैट्रिक्स नहीं आएगा, वो कंपोनेंट मैट्रिक्स आएगा। और जब मैं फैक्टर एनालिसिस यूज करूंगा यूजिंग PAF, प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, तब वो फैक्टर मैट्रिक्स आएगा। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं होती, बस इसमें यही है कि जो कंपोनेंट है वही फैक्टर है, मतलब दे आर पैरेलल। ओनली थिंग इज दैट मेथड्स आर डिफरेंट। बट व्हाट इज द बेसिस? ये बेसिस क्या है? ये मेथड अलग क्यों है? ये मेथड अलग इसलिए है कि वेरिएंस की असम्पशन, मैंने भी बताया था आपको कि देयर इज अ शेयर्ड वेरिएंस एंड देयर इज अ यूनिक वेरिएंस। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है वो अज्यूम करता है कि देयर इज एंटायरली शेयर्ड वेरिएंस। मतलब वो जो वन है ना, वन जो वेरिएंस था, टोटल वेरिएंस, वो उसमें यूनिक नहीं है कुछ भी। इसका मतलब ये जो आइटम्स हैं ये सारे यही एक्सप्लेन करते हैं फैक्टर्स को। मतलब ये सारे, मतलब ये जो एक फैक्टर, एक SPSS एंजाइटी निकल के आया कि ये और कहीं कुछ एक्सप्लेन नहीं करते, ये यही करते हैं। तो देयर इज नो यूनिक वेरिएंस। अगर मेरी असम्पशन ये है तो मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में अप्लाई मेथड एक्सट्रैक्शन का लगाऊंगा। अगर मेरी असम्पशन दूसरी है कि नहीं भैया वो तो आइटम्स जो है, ये आइटम्स मैंने ले तो लिए हैं लेकिन ये आइटम्स जरूरी नहीं है कि ये यही कैप्चर करें इस फैक्टर को, हो सकता है कुछ और को भी करे, तो मैं फिर प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग यूज करूंगा। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मेक्स द असम्पशन दैट देयर इज नो यूनिक वेरिएंस, द टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू कॉमन वेरिएंस। So recall the variance that can be partitioned into common and unique variance. If there is no unique variance, then common variance takes up. This is what you can see. This is what the difference you can see. Assumption in principal component analysis is कि जो total variance था मेरा, वो सारा का सारा common variance है। मतलब ये जो फैक्टर है, ये मिलके, ये फैक्टर जो है ये सारे आइटम्स को एक्सप्लेन करता है। आइटम्स जो है और किसी फैक्टर को नहीं बना सकते, ये इसी को बना रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। लेकिन assumption in factor analysis, जिसको हम इस फैक्टर एनालिसिस को कई बुक्स में आपको कॉमन फैक्टर एनालिसिस के नाम से भी मिलेगा। कॉमन मतलब ये CFA वो नहीं है, कंफर्मेटरी नहीं है, ये कॉमन मतलब जो जनरल फैक्टर एनालिसिस की बात कर रहे हैं। दिस इज has been used to differentiate between the principal component analysis and factor analysis। तो इसका मतलब ये है कि मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में ये मान के चलूंगा कि ये जो 8 के 8 आइटम्स हैं, ये सारा का सारा जो वेरिएंस है इनका वो कॉमन है। ये कॉमन वेरिएंस, ये जो SPSS एंजाइटी जो हमारा एक कंपोनेंट है, वो उनका वेरिएंस जो है सबका टोटल में अगर करूंगा तो वो 1 आएगा, वो कम्युनैलिटी है। तो इसका मतलब कम्युनैलिटी इसकी 1 हो गई। इसकी कम्युनैलिटी, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कोई कि भैया बताओ प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में कम्युनैलिटी कितनी होती है, आपका आंसर होना चाहिए 1 हो, क्योंकि वो इसके इक्वल होता है टोटल वेरिएंस के। अच्छा, फैक्टर एनालिसिस में जैसे मैंने बताया, उसमें ये असम्पशन होती है कि ये यूनिक वेरिएंस भी है। मतलब ये आइटम पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं होता इस फैक्टर से, किसी और फैक्टर से भी एक्सप्लेन होगा जो कि जिसमें हम रिसर्च नहीं कर रहे हैं।
तो अगर देखेंगे तो इट्स मतलब कब हमें डिफरेंस करना चाहिए, मतलब मैं एज ए रिसर्चर मैं कब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाऊं, कब मैं फैक्टर एनालिसिस लगाऊं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले द गोल ऑफ PCA is to replicate the correlation matrix using a set of components that are fewer in number and the linear combination। अगर मैं आपको सिंपली में बताऊं तो हमें एक कोरिलेशन मैट्रिक्स देखा था आपने। कोरिलेशन मैट्रिक्स क्या था? कोरिलेशन मैट्रिक्स वाज finding out the correlations between the different variables, मतलब वो आइटम्स में आपस में कोरिलेशन दिखा रहा था। अब जब मैं इसको फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरा एक कंपोनेंट मैट्रिक्स आएगा। देखो मैंने कहा अगर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में यूज करूंगा तो कंपोनेंट मैट्रिक्स आएगा। ये जो कंपोनेंट मैट्रिक्स है ये मुझे ये बताएगा कि मैं कितना कोरिलेशन है वेरिएबल्स और कंपोनेंट्स में। यहां पर हम जब कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो आपके दिमाग में होना चाहिए फैक्टर्स, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि दो फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं या दो कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं तो वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम जब इसको एनालाइज करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल्स क्या क्या निकल के आती हैं फैक्टर एनालिसिस। लेट्स ट्राई। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, हम एनालाइज में जाएंगे, डायमेंशन रिडक्शन। देखो मैंने बताया ना कि डेटा रिडक्शन टेक्निक है फैक्टर एनालिसिस, तो हम डायमेंशन रिडक्शन करेंगे और फैक्टर को क्लिक करेंगे। तो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। ये देखो मैं एनालाइज में गया, ये लाइव है, एनालाइज में गया, डायमेंशन रिडक्शन में गया। I am doing with the same file which I have sent to you, all of you. So you can see this 8 questions, 8 items are there. Now I want to, देखो ये बोल भी रहा है ये वेरिएबल्स, ऊपर देखो वेरिएबल्स बोल रहा है ना, तो ये सारे के सारे 8 आइटम्स जो मेरे वेरिएबल्स हैं इनको मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा इस वेरिएबल्स में। तो देखो ये यहाँ पर मेरा KMO भी निकाल सकता है अगर मुझे चाहिए डेटा एडिक्वेसी। मैं ये भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्या आता था ये कोरिलेशन मैट्रिक्स। अभी देख लेते हैं हम क्या क्या दिखाता है हमारे को ये। और अच्छा एक हम यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्शन मेथड। ये जो एक्सट्रैक्शन मेथड है यहाँ पर ये कई सारे मेथड दिखाता है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की और ये प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग की। तो मैं दोनों में से कोई भी मेथड चूज कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट चूज कर रहा हूँ। प्रिंसिपल कंपोनेंट में क्या असम्पशन पे चूज कर रहा हूँ कि इनका जो है कॉमनैलिटी 1 होगी, मतलब इनमें सारा शेयर्ड वेरिएंस है इन आइटम्स में, कोई भी यूनिक वेरिएंस नहीं है। तो मैंने अनरोटेटेड फैक्टर सॉल्यूशन, मैं भी रोटेशन नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बोला कि इस वेबिनार में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दी रोटेशन। रोटेशन के लिए हमें अलग से टाइम चाहिएगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि आज रोटेशन भी हो सके। तो एक स्क्री प्लॉट, अच्छा देखिए स्क्री प्लॉट है, इसको भी मैं टिक कर लेता हूं। अब ये जो चीज दिख रही है प्रिंसिपल कंपोनेंट मैंने कर लिया, ये कोरिलेशन मैट्रिक्स दिखाएगा। तो अब ये कोरिलेशन किसकी दिखाएगा? ये कोरिलेशन दिखाएगा वेरिएबल्स की और आइटम्स की, किसके साथ? कंपोनेंट्स के साथ। कंपोनेंट्स क्या है? फैक्टर्स के साथ। कोरिलेशन मैट्रिक्स, सिर्फ कोरिलेशन मैट्रिक्स उन वेरिएबल्स की दिखा रहा था जो हमने पहले देखा था कोरिलेशन बाइवेरिएट में जब हम गए थे। यहाँ पे ये दिखा रहा है किसकी दिखा, जब देखेंगे टेबल आएगा तो वो कंपोनेंट मैट्रिक्स के नाम से आएगी, कंपोनेंट मैट्रिक्स के नाम से आएगा वो कोरिलेशन टेबल। अच्छा अब देखिए एक्सट्रैक्ट, अब ये बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू। ये आइगन वैल्यू का क्या वो है वो मैं बाद में बताता हूँ आपको कि आइगन वैल्यू क्या चक्कर क्या है। और ये डिफॉल्ट देखो 1 आता है, तो मैं क्या करता हूँ फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे 9 करूँ तो क्या 9 एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जब वेरिएबल 8 है तो फैक्टर कंपोनेंट 8 कैसे, मतलब 9 कैसे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे? तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में मैक्सिमम आप 8 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब 8 वेरिएबल और 8 कंपोनेंट, मतलब एक वेरिएबल एक को करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर तो 8 फैक्टर निकल के आएंगे और एक स्टेटमेंट ही एक फैक्टर का इतना पावरफुल हो गया कि वो एक ही स्टेटमेंट तो एक ही फैक्टर को एक्सप्लेन कर रही है, तो वो गड़बड़ वाली बात है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम, मैंने मुझे नहीं पता कि कितने फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे, तो मैंने मैक्सिमम भर दिया यहाँ पर कि भैया 8 ही कर लेते हैं, चलो देखते हैं 8 में कितने एक्सट्रैक्ट होके आते हैं, फिर उसका एनालिसिस देखते हैं। अच्छा एक यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम कन्वर्जन इटरेशंस फॉर कन्वर्जेंस।
कि आइटरेशंस क्या होती हैं। आइटरेशंस एक मशीन टूल है जो आइटरेशन, मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं कि आप अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपने अपने कपड़े रखे कुछ जाने के लिए, पैकिंग करने के लिए अटैची में वो कपड़े रखे, फिर आपने सोचा नहीं यार ये चेंज कर लेते हैं, दूसरे रख लेते हैं, फिर आपने कहा नहीं ये नहीं, आपकी वाइफ ने बोला नहीं ये, या हस्बैंड ने बोला कि नहीं ये नहीं ये रख लो, तो वो आप कितना चेंज किया, आप कितनी रोटेट किया उन चीज़ों को, वो आइटरेशंस है। इसमें आप मैक्सिमम जो है जितना चाहो आप उतना कर सकते हो। ज़्यादा बेटर है कि आप 100 कर दो, ज़्यादा कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है कम में रोटेट नहीं हो पाता वो, और वो आप देखेंगे जब हमारा रिजल्ट आएंगे तो वो बोलेगा कि कितने आइटरेशंस रिक्वायर्ड थे इसके लिए। तो चलो 100 कर लेते क्योंकि हार्म नहीं है उसमें। एक आपने अपर लिमिट सेट कर दी कि भाई जितना तू कर सकता है उतना कर ले, उतने कपड़े तू चेंज कर ले, जितनी मर्जी तू फ्रीडम है तेरे को, खूब चेंज कर करके देख ले, जो तेरे को बेस्ट लगे वो करके देख ले। तो मैंने 100 कर लिया जी। अब ये मेरा, मैंने फैक्टर एक्सट्रैक्शन मैंने क्या किया, प्रिंसिपल कंपोनेंट, कोरिलेशन मैट्रिक्स को चेक किया, अनरोटेटेड फैक्टर क्योंकि मैं फैक्टर जो है वो रोटेट नहीं कर रहा हूं, और स्क्री प्लॉट, और मैंने एक्सट्रैक्शन मेरी आइगन वैल्यू पे नहीं हो रही, मेरी फिक्स्ड फैक्टर्स पे हो रही है। फिक्स्ड फैक्टर्स मैंने 8 क्यों रखे, क्योंकि मेरे 8 ही वेरिएबल हैं, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकते और होंगे भी नहीं, ये 8 भी नहीं होंगे, देखते हैं कितने होते हैं। ये देखिए, अब ये सबसे पहले केएमओ वाला आया, देखो सैंपलिंग ऑफ डेटा एडिक्वेसी, और केएमओ का स्कोर है 0.818। मैंने आपको बताया था अगर 0.6 से ज्यादा तो डेटा एडिक्वेट है, तो बिल्कुल सही है। और बार्टलेट टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी 0.000 आ रहा है, क्यों, क्योंकि कोरिलेशन देखिए है ना, डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर भी 0 नहीं है, नीचे भी 0 नहीं है। ऊपर जब ऊपर नहीं होगा तो नीचे भी नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों को कोरिलेट करके दिखाता है, तो ये रिजेक्ट होगी नल हाइपोथेसिस मेरी, तो ये ठीक है। अब ये देखो ये कम्युनैलिटी क्या चीज है। कम्युनैलिटी देखो, इनिशियल बोल रहा है 1, एक्सट्रैक्शन बोल रहा है 1, इनिशियल बोल रहा है 1, एक्सट्रैक्शन बोल रहा है 1। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है और मैं 8 के 8 फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अगर मैं, मेरी इनिशियल वैल्यू तो 1 रहेगी, अगर मैं 8 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरा एक्सट्रैक्शन का भी 1 आएगा, क्योंकि मेरे 8 के 8 वेरिएबल, टोटल 8 ही है मेरी, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, जो टोटल वेरिएंस देखिए 8 आइटम्स हैं, ये 8, अगर मैं पूरा एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं तो हम 8 लोग मिलकर 8 चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, तो मेरा जो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेनेशन है वो 8 ही हो गया। तो अगर मेरी इनिशियल जो कम्युनैलिटी है वो 1 है और वो एक्सट्रैक्ट भी 1 ही होगी, क्योंकि मैंने 8 के 8 कंपोनेंट लिए, ध्यान रख लीजिए, क्योंकि 8 वेरिएबल थे, 8 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो इनिशियल और एक्सट्रैक्शन कॉलम सेम आएगा। कम्युनैलिटीज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस बिफोर टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड, ये आने से पहले मैं ये कंपोनेंट मैट्रिक्स आपको समझाना चाहता हूं। अब ये देखिए कंपोनेंट मैट्रिक्स, देखिए ये ऊपर जो देख रहे हैं, ऊपर ये स्क्री प्लॉट भी आ गया, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये फैक्टर लोडिंग्स हैं, एक तरह से देखा जाए कंपोनेंट लोडिंग्स हैं ये, और ये इनके वेरिएबल्स हैं। स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई, माय फ्रेंड्स थिंक आई एम स्टूपिड नॉट थिंक, ये जो 8 हैं ये वेरिएबल्स हैं और ये 8 कंपोनेंट्स हैं ऊपर जो आए। अब इनका कोरिलेशन है, देखो ये 1, ये जो ये एक तरह से कोरिलेशन की वैल्यूज हैं, ये 0.659, 0.126, -0.398, ये और ये इनका सबका आपस में, मतलब फैक्टर स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई कितना कोरिलेटेड है कंपोनेंट 1 से 0.659। सेकंड वाला वेरिएबल पहले कंपोनेंट से कितना कोरिलेटेड है, -0.300। तीसरा वाला कितना है, -0. तो लाइक दिस यू कैन सी द स्कोर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स in terms of correlation with the variables. Correlation matrix दे रहा था correlation among the variables, component matrix दे रहा है correlation among the variables with the components, और components basically वो हमारे factors हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं अपनी स्लाइड में, यही आइटम होंगे, मैंने यही टेबल पेस्ट की हुई है वहां पर, तो देखो ये किया, ये मैंने ऐसे किया था, और ये 8 किए थे, यहाँ पे कन्वर्जेंस 100 की थी, और ये मेरी कंपोनेंट, आइगन वैल्यू बाद में बताऊंगा, ये मेरी कंपोनेंट मैट्रिक्स आ गई। देखो ये जो कंपोनेंट मैट्रिक्स आ गई। अब बात आती है कि
ये क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम कैसे इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, तो मेन बात ये है इंटरप्रिटेशन की। अब इस टेबल से मैं आपको, आपके पास अगर कैलकुलेटर हो तो मैं आपको ये कैलकुलेट करके बता दूं कि ये कम्युनैलिटीज कैसे निकालते हैं और ये जो आइगन वैल्यू है वो क्या है। देखिए ये जो 0.659 है ये कोरिलेशन है कंपोनेंट 1 का पहले वेरिएबल्स 0.65 अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, देखो कई बार ना नेगेटिव्स हैं तो सबका स्क्वायर करेंगे, अगर तो इसका स्क्वायर करिए, 0.659 का स्क्वायर करिए, 0.136 का स्क्वायर करिए, माइनस 0.398 का स्क्वायर करिए, 0.160 का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए, 0.568 का करिए, माइनस 1.77 का करिए, 0.068 का करिए, इन सब का स्क्वायर करिए और ऐड करिए, क्या आएगा पता है? 1। क्यों? क्योंकि ये 8 के 8 कंपोनेंट मैंने एक्सट्रैक्ट करना चाहा है और मैंने ये अज्यूम किया है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ये अज्यूम करता है कि इसमें कोई भी यूनिक वेरिएंस नहीं है। इसका मतलब स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई का जो वेरिएंस है जो वो एक्सप्लेन, वो इन 8 आइटम से एक्सप्लेन होता है। मतलब इन 8 कंपोनेंट्स के अलावा दुनिया में कोई कंपोनेंट नहीं है जो स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई को एक्सप्लेन करे। या मैं ऑल्टरनेटिवली पुट करूं, स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई इज एन आइटम which contributes only to these 8 components in the world and none other। तो कोई इसका यूनिक वेरिएंस नहीं है, तो ये 8 कंपोनेंट्स को ही कंट्रीब्यूट करेगा। ये ऐसी अजम्पशन हम लेते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो इसीलिए मैं इनका अगर स्क्वायरिंग करूंगा सबका, इन सारे लोडिंग्स की, ये कंपोनेंट लोडिंग्स हैं, इनको मैं अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो वो आएगा 1। तो देखो पहली रो का इफ आई, अब ध्यान से सुनिए, if the sum of squared loadings of an item, ये आइटम है, स्टैटिस्टिक्स मेक्स मी क्राई आइटम है या वेरिएबल है, sum of squared loadings of an item across the components, मतलब इसके सामने इनकी सबकी स्क्वायरिंग करता जा रहा हूं, is called communality, that is 1। क्योंकि यही जो स्क्वायरिंग करके आ रहा है वही शेयर्ड वेरिएंस है। अब देखो मैं दोबारा से बोल रहा हूं, द सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स ऑफ एन आइटम अक्रॉस द कंपोनेंट्स 1 2 3 4 ऑल द कंपोनेंट्स 8, तो ये 1 आएगा। इसका मतलब दूसरा वाला माय फ्रेंड्स विल थिंक आई एम स्टूपिड, इसका -300 है, 0.300 है, इसका स्क्वायरिंग, फिर दूसरे वाले का 0.866 का स्क्वायरिंग, 0.025 माइनस 0.025 का स्क्वायरिंग, इनका स्क्वायरिंग अक्रॉस द कंपोनेंट्स अगेन विल गिव मी 1। सो बिकॉज इनका जो शेयर्ड वेरिएंस ही टोटल वेरिएंस है, वो सारा 1 एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये बढ़ गया आपस में, मतलब सारा बांट लिया इन 8 कंपोनेंट्स में आपस में इसका एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से अगर मैं हॉरिजॉन्टली टोटल करूंगा तो सबकी सारे वेरिएबल्स का टोटल जो है 1 1 1 1 आता रहेगा और कम्युनैलिटीज हर लास्ट कॉलम में, मतलब 8 के बाद जहां आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं एक 9 कॉलम डाल दूं, मतलब कॉलम 9 डाल दूं, नंबर ना लिखूं, तो वो इनका टोटल होगा और वो 1 1 1 1 1 1 1 आता रहेगा। तो कितना टोटल हो जाएगा सारी कम्युनैलिटीज का? 8। तो टोटल ऑफ ऑल कम्युनैलिटीज विल बी 8 एंड टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड विल आल्सो बी 8। क्योंकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम अज्यूम करते हैं कि देयर आर टोटल जो टोटल वेरिएंस है वही हमारा शेयर्ड वेरिएंस है। अब ये देखिए कि ये डाउन द कंपोनेंट क्या बताता है। अब मैंने हॉरिजॉन्टली टोटल कर लिया, स्क्वायर किया और टोटल कर लिया, हॉरिजॉन्टली स्क्वायर किया और टोटल कर लिया। देखो कैसे किया मैंने, आपको दिखाता हूं मैं, ये स्क्वायर किया, ये वाला जो कम्युनैलिटीज बना। अगर मैं वर्टिकली टोटल करूं, मतलब एक कंपोनेंट का 0.659 स्क्वायर माइनस 300 माइनस 6.53 माइनस 720 माइनस 6.50, इन सब के स्क्वायर करके मैं ऐड करूं और 1 के नीचे यहाँ टोटल, यहाँ पे मैं टोटल लिखूं, उसको बोलेंगे आइगन वैल्यू। क्या बोलेंगे? आइगन वैल्यू। तो व्हाट इज आइगन वैल्यू? Eigen value is the sum of squared loadings
ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का, ऑफ ए कंपोनेंट अक्रॉस द वेरिएबल्स। अब देखिए कॉमनैलिटी और आइगन वैल्यू का क्या रिलेशन है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल टोटल करता हूं स्क्वायरिंग करके तो वो कॉमनैलिटीज बताएगा, और अगर मैं वर्टिकली टोटल कर दूं स्क्वायर करके तो वो आइगन वैल्यू बता देगा हर एक कंपोनेंट। अब मैं आपको समझाता हूं कि आइगन वैल्यू क्या है। देखो, आइगन वैल्यू रिप्रेजेंट्स द टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएंस दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ गिवन कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट। Eigenvalues are the sum of squared component loading across all items for each component, which represents the amount of variance in each item that can be explained by the principal component. मतलब ये जो मैंने स्क्वायरिंग करा और ये सबको जो लोड करके यहाँ पे जो आ गया, तो देखो ये सेकंड कंपोनेंट की भी एक इसी तरीके से मैं स्क्वायरिंग करूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा, इसी तरीके से थर्ड कंपोनेंट की करूंगा। इट इज वेरी ऑब्वियस कि सबसे ज्यादा जो ये हमारा कंपोनेंट मैट्रिक्स आता है वो इसी उसमें आता है कि जो पहले का टोटल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब कि जो पहला कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है इन सारे के सारे 8 के 8 वेरिएबल्स को। वो ध्यान से समझिए, अगर मैंने इनको स्क्वायरिंग करी प्रिंसिपल कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट 1 है इसकी मैंने जो कोरिलेशन आया हुआ है कंपोनेंट का इनके साथ, अगर मैंने इनको सबको स्क्वायर किया और वर्टिकली ऐड कर दिया तो वो नीचे जो आएगा वो टोटल आइगन वैल्यू आएगी। और ये जो जैसे ये देखिए ये आइगन वैल्यू आएगी 0.65 स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर से खुद करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। ये सब स्क्वायर करेंगे तो 0.3057, ये मतलब इसका टोटल 1 का वर्टिकली टोटल 3.057 आएगा। ये आइगन वैल्यू अब 3.507 का मतलब क्या है कि देखिए ये जो पहला कंपोनेंट है ये 8 कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा ये बात है कि कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है, खुद अकेला कंपोनेंट पहला कंपोनेंट इन 8 के 8 आइटम्स को कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है। देखो हमारे इतना हमें समझ आना चाहिए कि 8 कंपोनेंट 8 वेरिएबल्स को 100% एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि देयर इज नो यूनिक वेरिएंस। मतलब ये जो वेरिएबल्स हैं 8 आइटम्स जो पड़े हुए हैं ये किसी को बाहर दुनिया में किसी को एक्सप्लेन नहीं करवा रहे हैं किसी को, कि खुद सारे इन्हीं 8 कंपोनेंट से ही एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो 8 के 8 कंपोनेंट 100% एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन जो आइगन वैल्यू आई है वो 3.5057 जो आई है पहले कंपोनेंट की, वो ये बताती है कि सबसे ज्यादा लोडिंग जो हुई है वो पहले कंपोनेंट में हुई है। मतलब पहला कंपोनेंट सबसे ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है इन 8 के 8 आइटम्स को। तो कितना परसेंट हो गया वो, अगर आप देखें, अगर 3.057 आइगन वैल्यू है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए, ये इसका पहले का टोटल किया 3.057 आएगा, इस दूसरे वाले का टोटल करूंगा कुछ आएगा, तीसरे वाले को करूंगा स्क्वायरिंग करके कुछ आएगा, चौथे का इन सबको मैं अगर नीचे सबसे लास्ट में जो है अगर मैं टोटल कर लूंगा तो वो टोटल फिर से 8 आएगा। अब देखो वर्टिकली कितना टोटल आ रहा था, 8 आ रहा था, वो कॉमनैलिटीज का टोटल आ रहा था। अब मैं हॉरिजॉन्टली टोटल कर रहा हूं तो वो आइगन वैल्यूज का टोटल आ रहा है, तो आइगन वैल्यूज का टोटल भी 8 है, तो कॉमनैलिटीज का टोटल भी 8 है, आइगन वैल्यूज का टोटल भी 8 है। क्यों भाई, क्योंकि वो शेयर्ड वेरिएंस है। वो आइगन वैल्यूज ये बताती हैं कि ये जो वेरिएंस है सारे जो आइटम्स का वो कितना है टोटल मिलके तो 1 ही बनना है। तो एक आइटम का सारे का टोटल मिलके 8 कंपोनेंट में 1 बनना है, और एक कंपोनेंट का जो वेरिएंस है वो सारे आइगन वैल्यू में जाके बनना है। अब वो ज्यादा हो सकता है, यहाँ पे तो 1 ही है लेकिन आइगन वैल्यू ज्यादा हो सकती है। ये कम्युनैलिटीज में नहीं हो सकता ऐसा कि कम्युनैलिटीज में ज्यादा लोड हो जाए, कम्युनैलिटीज में 1 1 1 1 ही आएगा। ये आइगन वैल्यूज में ये ज्यादा हो सकता है, मतलब एक फैक्टर। अब आप ध्यान करो, अगर मैंने बोला था मल्टी कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम, मल्टी कोलिनियरिटी वाली प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर बहुत ही ज्यादा कोरिलेशन है आइटम्स में तो ये सारे आके पहले वाले कंपोनेंट में लोड हो जाएंगे, मतलब एक ही फैक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि आपके, अच्छा एक बात सोचो, अगर ये 1 1 1 हो तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये नीचे 1 1 1 आ जाए ना सबका, और जैसे कॉमनैलिटीज 1 1 आई है, अगर आइगन वैल्यू नीचे सबकी 1 1 आ जाए तो 8, इसका मतलब ये हो गया 8 वेरिएबल से 8 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, व्हिच इज वेरी अनरियलिस्टिक। तो इसका मतलब आइगन वैल्यूज हमेशा 1 से ज्यादा होंगी उन फैक्टर्स की जो एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जो नहीं होंगी वो कम होंगी, वो ड्रॉप कर देंगे हम, वो हमें स्क्री प्लॉट से पता चलेगा।
हमें स्क्रीन प्लॉट से पता चलेगा, क्योंकि उसकी एक एल्बो बनती है, वो भी हम देखते हैं। अभी आपको ये समझ आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की अभी है कि कम्युनैलिटीज क्या है। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट commonalities are the shared variance, and it is how mathematically it is computed. Mathematically it is computed by sum of squared loadings of a variable across the components. एक वेरिएबल का अलग अलग कंपोनेंट में स्क्वायरिंग करा तो वो कम्युनैलिटी आई हमारी 1। और जो आइगन वैल्यू है वो क्या है? इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स of a component across the variables। एक कंपोनेंट का सारे वेरिएबल्स में वो हमारी आइगन वैल्यू आ गई। कम्युनैलिटी शेयर्ड वेरिएंस एक्सप्लेन करता है, आइगन वैल्यू वो एक्सप्लेन करती है कि हमारा एक कंपोनेंट कितना वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है 8 आइटम्स का। तो अगर वो ज्यादा वैल्यू लोड हो गई तो मैं हिस्सा खा जाऊंगा। मेरा टोटल आइगन वैल्यू जो है ना, 8 के 8 कंपोनेंट की टोटल आइगन वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8। सारे 8 कंपोनेंट्स की आइगन वैल्यू का टोटल 8 होना चाहिए। अगर पहले में 3.057 लोडिंग हो गई, तो इसका मतलब आप देखिए 8 का टोटल 8 का कितना हिस्सा पहला कंपोनेंट ले गया? 3.057। तो आप 3.057 को डिवाइड कर दीजिए 8 से, आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कि पहला जो कंपोनेंट है हाउ मच दैट इज एक्सप्लेनिंग। तो अगर तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि देखो ये जो है ये देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, 3.057 डिवाइड बाय 8 38.21%। इसका मतलब जो पहला कंपोनेंट है ये 38.21% जो है वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब 100 वेरिएंस एक्सप्लेन होना है, 100% एक्सप्लेन होना है, उसका 38वां हिस्सा इसने अकेले ने एक्सप्लेन कर दिया कंपोनेंट ने। मतलब ये बड़ा पावरफुल कंपोनेंट है। गॉट इट? So the square of each loading represents the portion of variance explained by a particular component for item। ये मैंने कम्युनैलिटी वाला बताया हुआ है कि इस तरह से कम्युनैलिटी का पता चल रहा है। और अगर मैं वर्टिकली टोटल कर रहा हूं तो आइगन वैल्यू का पता चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8 के 8 कंपोनेंट्स की आइगन वैल्यू का टोटल होगा 8, वही टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है। 8 की 8 वेरिएबल्स की कम्युनैलिटी का टोटल होगा 8, क्योंकि सबकी कम्युनैलिटी 1 1 1 1 1 है। यहाँ पे आइगन वैल्यू 1 1 1 नहीं है, वहां पे कम्युनैलिटीज 1 1 है। तो वो टोटल एंड में जाके वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल 80 आएगा, दैट इज टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड। अब ये देखिए, जो मैंने उस बेसिस पे जो मैंने बताया अभी कि अब टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन, अब ये टेबल आपको समझ में आ जाएगी। आपको आइगन वैल्यू समझ में आ गई, आपको कम्युनैलिटी समझ में आ गई, अब आपको टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन ये टेबल समझ में आ जाएगी। ये क्योंकि ये सेम जो मैंने अभी एक्सट्रैक्शन किया था प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में, तो ये टेबल भी आई थी। एक कंपोनेंट मैट्रिक्स आया था, एक ये टेबल आई थी, एक स्क्री प्लॉट आया था, ठीक है, एक केएमओ के साथ। तो अब आप देखिए इनिशियल आइगन वैल्यू, इनिशियल मतलब जो शुरू में कितनी थी और एक्सट्रैक्ट कितनी हुई। अब देखिए इनिशियल और एक्सट्रैक्शन हमेशा सेम आएंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में। जब मैं 8 अगर मेरे वेरिएबल थे और मैंने 8 के 8 एक्सट्रैक्ट किए, ध्यान से सुनिए, अगर मैंने 8 मेरे वेरिएबल थे और मैंने 8 के 8 एक्सट्रैक्ट किए, इफ आई हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल द कंपोनेंट जितने भी वेरिएबल्स थे, तो वो सेम आएगा दोनों टोटल। लेकिन अगर मैं कम करूंगा एक्सट्रैक्ट, तो मेरा इनिशियल आइगन वैल्यू तो यही रहने वाला है, एक्सट्रैक्शन जो है वो अलग हो जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स, क्योंकि इनिशियल आइगन वैल्यू क्यों बोल रहा है? आइगन वैल्यू तो सबका स्क्वायर्ड लोडिंग्स है, तो यहाँ पे तो आइगन वैल्यू बोल दिया, यहाँ पे आइगन वैल्यू नहीं बोल रहा, क्योंकि वो हो सकता है फैक्टर कम हो, सबके ना हो। तो देखिए अब ये 8 कंपोनेंट्स थे, अब ये ध्यान रखिए 8 कंपोनेंट्स मैंने एक्सट्रैक्ट करने चाहे थे 8 वेरिएबल से। तो जो पहला कंपोनेंट है उसकी आइगन वैल्यू आई थी 3.057, जो मैंने अभी पीछे दिखाया कि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग ऑफ ए कंपोनेंट अक्रॉस ऑल द वेरिएबल्स, ऑल द आइटम्स, that is 3.057, which says 38.206% of variance। इसका मतलब 38.20 से ये जो 21 वाला जो वेरिएंस है, ये उसका उतना परसेंट पहला आइटम कर रहा है। अच्छा, दूसरे की आइगन वैल्यू आ रही थी 1.067, और ये 13% वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है 8 आइटम्स का। तो
अगर इसका मतलब है कि पहले दो कंपोनेंट्स ने मिलके 51% जो है एक्सप्लेन कर दिया 8 आइटम्स का, बाकियों भी कर रहे हैं लेकिन वो 1 से कम कर रहे हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड है कि आइगन वैल्यू जिसकी 1 से नीचे आ जाए उस फैक्टर को ड्रॉप कर देते हैं। इसका मतलब क्यों करेंगे ड्रॉप, देखो इसका मतलब वो फैक्टर अपने आप में एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा पूरा। आप देखो ना, सबसे 1 अगर 1 आए, 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा कि वो फैक्टर कंप्लीटली एक्सप्लेन हुआ इनसे। अब ये फैक्टर जो है उसने एक्सप्लेन किया इन आइटम्स को एटलीस्ट 1। अब ये 1 से ज्यादा कर रहे हैं, वो 3 से ज्यादा कर रहा है, मतलब वो तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ये 1 है, 1 से ऊपर है। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमें ये बताता है कि हमारे दो फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये क्यूमुलेटिव टेबल बता रहा है कि 38 है, फिर 51 हो गया, 63 हो गया। अब कई रिसर्चेस कहती हैं कि भैया जो फैक्टर्स हैं वो कितना एक्सप्लेन करना चाहिए वेरिएंस, तो वो कहते हैं 80। अगर मैं 80 लेता हूं, तो अगर मैं 80% वाला ये लेता हूं एक्सप्लेनेशन, मतलब इन वेरिएंस का, तो ये मेरे को 5 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। 5 कंपोनेंट, लेकिन देखो ये इनकी लोडिंग्स जो आई हैं, ये जो हमारी आइगन वैल्यूज आई हैं 0.6 2.7, तो ये लेकिन ठीक नहीं है, दैट शोज दैट इट इज वीक। तो हम दो फैक्टर्स ही एक्सट्रैक्ट करेंगे। सम ऑफ, अब ये कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो एज इट इज है, सारे के सारे 8 कंपोनेंट्स ही हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सेम आ रही है टेबल टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन की। तो मैं स्क्री प्लॉट अगर देखूं तो स्क्री प्लॉट मेरे को यही दिखाएगा। स्क्री प्लॉट में एल्बो बनती है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया था वहाँ पे स्क्री प्लॉट, तो एल्बो देखिए, एल्बो मेरे को ये बता रही है कि कहाँ से वो मुड़ रहा है। एल्बो से ऊपर हम ले लेते हैं, जहाँ एल्बो होती है उससे ऊपर ले लेते हैं, लेकिन ये हमारे को ये दिखा रहा है कि 1 से 2 ही है ऊपर। देखो ये 1.2 वाला और एक 3 वाला, 3 से ऊपर वाला जो आइगन वैल्यूज है। तो मेरे ये भी, मुझे इससे भी पता चल रहा है कि मेरे दो ही फैक्टर, स्क्री प्लॉट इज आल्सो टेलिंग मी कि मेरे सिर्फ दो ही फैक्टर एक्सट्रैक्ट होंगे 8 वेरिएबल्स से। तो सेम चीज मैंने स्क्री प्लॉट से बता दी। तो some criteria say that total variance explained by all components should be between 70 to 80, जैसे मैंने बताया, but ND feels that it may be untenable for social science research where extracted factors usually explain only 50 to 60%. तो हम आइगन वैल्यू पे, तो एक हमने थंब रूल बना लिया कि आइगन वैल्यू जिसकी 1 से ऊपर होती है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और स्क्री प्लॉट में जिसकी एल्बो से ऊपर जाएंगे उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, लेकिन वो आइगन वैल्यू 1 से ऊपर होनी चाहिए। और 50% तक भी अगर एक्सप्लेन कर रहा है वेरिएंस, ये 50 से 60% वाला पता कौन सा है, ये है, ये क्यूमुलेटिव वाला जो है। तो ये 51 कर रहा है, 51 यहाँ तक कर रहा है, तो दो फैक्टर हम ले लेते हैं। अब मुझे ये पता चल गया था कि मैंने 8 कंपोनेंट को, मेरे को पता नहीं था कि मैंने 8 फैक्टर्स जो हैं वो 8 कंपोनेंट जो मैंने एक्सट्रैक्ट करे, आई एक्सट्रैक्टेड 8 कंपोनेंट्स फ्रॉम 8 वेरिएबल्स, लेकिन मुझे पता चल गया कि 2 आएंगे। तो अगर मैं चलो 2 करता, तो अगर मैं वहां पे जो एक्सट्रैक्शन जो मेथड था आइगन वैल्यू पे करता, तो भी ये यही वैल्यूज आनी थी। अगर मैं अगर 2 पे कर दूं, एक्सट्रैक्शन कर दूं 2 पे, 8 ना करके मैं 2 फैक्टर एक्सट्रैक्ट करूं, तो तब क्या होगा, देखो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सेम है। अब मैंने क्या किया, फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने 8 की बजाय 2 कर दिए, आएंगे यही मेरे फैक्टर्स 2। अब देखो कि लेकिन होगा क्या, अब देखिए बाकी, अब देखो फर्क ये हुआ कि पहले 2 आए एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स में पहले 2 आए, बाकी के नीचे वाले गायब हो गए क्योंकि मैंने 2 ही एक्सट्रैक्ट किए। गॉट इट। लेकिन क्यूमुलेटिव में कोई डिफरेंस नहीं है, 51% ही है, वही आइगन वैल्यूज हैं, वही एक्सट्रैक्शंस हैं, और 2 ही हैं, क्योंकि वो पहले, अब देखिए इसका मतलब ये है कि मेरा जो कंपोनेंट मैट्रिक्स आएगा, ये जो मेरा कंपोनेंट मैट्रिक्स था, इसमें ये 3 4 5 6 7 8 जो है ये गायब हो जाएंगे। जब मैं वो करूंगा तो ये गायब हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे, तो मेरे पहले 2 रह जाएंगे, पहले 2 रह जाएंगे। देखते हैं, करके देखें। इसको कर दो 2। अब देखो ये कंपोनेंट मैट्रिक्स है, देखो पहले 2 रह गए, बाकी के गायब हो गए।
इसका मतलब कम्युनैलिटी इसकी क्या होगी, अब वो 1 नहीं बनेगी, 0.659 का स्क्वायर प्लस 0.136 का स्क्वायर, 0.659 का स्क्वायर प्लस 0.136 का स्क्वायर क्या आएगा पता है, ये आएगा 0.453। तो इनिशियल तो 1 थी लेकिन टोटल 1 नहीं बन पाई क्योंकि 8 के 8 कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट नहीं हुए। इसका मतलब -30 का स्क्वायर प्लस 0.866 का स्क्वायर विल गिव मी व्हाट, विल गिव मी 0.840। तो ये मेरी कम्युनैलिटीज देगा। वहां पे एक्सट्रैक्ट अगर आप देखेंगे इनिशियल कम्युनैलिटी 1 थी, एक्सट्रैक्शन भी 1 आ रही थी, लेकिन यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया क्योंकि मेरे कंपोनेंट सारे एक्सट्रैक्ट नहीं हुए। तो देखो आइगन वैल्यू कितने की आएगी, आइगन वैल्यू इन्हीं दो कंपोनेंट्स की आएगी, मतलब 0.659 का स्क्वायर -300 का स्क्वायर माइनस ये 0.653 का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर इनकी हम वर्टिकली टोटल करते जाएंगे तो ये जो है आइगन वैल्यूज दे देगा। अब एक टेस्ट कर लेते हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन सा आंसर जरा देख लेते हैं, अगर आपने थोड़ा सा अगर ये समझ में आ गई है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। यू कैन राइट योर आंसर इन दी चैट बॉक्स। The elements of the component matrix are correlation of the item with each component. Component matrix में correlation है item का with each component. Is it true or false? You can write your answers in the chat box. Okay. People are writing true, true, true. Considering eigen value, देखिए considering eigen value नहीं है, ये सीधा बताना है कि elements of component matrix are correlation. Component matrix में क्या बताता है वो आपको, मैंने अभी बताया component matrix जो है basically correlation बताता है items का component के साथ। तो ये आंसर true है, बिल्कुल सही बोला आपने, true है। दूसरा देखिए, sum of squared eigen values is the proportion of variance under total variance explained. Sum of squared eigen values is the proportion of variance under total variance explained. Now, sum of squared eigenvalues is the proportion of variance under total variance explained. No, it's false. Sum of squared eigenvalues is the proportion of variance under total variance explained. Why? Sum of squared eigenvalues का थोड़ा स्क्वायर होता है, अरे वैल्यूज कंपोनेंट्स जो उनकी स्क्वायर्ड लोडिंग्स थी उनका स्क्वायर होता है जो आइगन वैल्यू आता है। आइगन वैल्यू तो अपने आप में परसेंटेज बताता है, तो स्क्वायर्ड आइगन वैल्यूज का कहां पे स्क्वायर मैंने बताया, कहीं नहीं बताया, इट्स फॉल्स। The component matrix can be thought of the correlations and the total variance explained can be thought of as R square. R square basically अब आपको नहीं समझ में आएगा अभी। R square basically एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिग्रेशन में हम यूज करते हैं कि जो एक्सप्लेन करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना एक्सप्लेन कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो component matrix can be thought as a correlation, yes, and total variance it can be seen as a component, so it's true. तो आप लोगों को फेयरली समझ आ गया है इसका मतलब कि हाँ ये क्या चीज है। Now, let's take another quiz. In a 8 component PCA, how many components must you extract so that commonality for the initial column is equal to the extraction column? बताओ कितने होने चाहिए? 8 component अगर PCA में, तो मैं कितने components को extract करूं कि उसकी जो commonality है for initial column is equal to the extraction column? आता है ना commonality table में initial और extraction, तो commonality 1 है और extraction भी 1 है। कहने का मतलब ये है कि initial column में 1 commonality और extraction column में 1 commonality, तो कितने करना चाहिए? Yes, people are answering right, 8। बिल्कुल सही बात है, 8 के 8 कंपोनेंट करेंगे तभी टोटल बनेगा, क्योंकि वो 8 के 8 कंपोनेंट ही एक्सप्लेन करेंगे टोटल वेरिएंस 8 वेरिएबल्स का। Then the next is the eigenvalue represents the commonality for each item. Eigenvalue, true or false? It is what you are writing, true or false? Eigenvalue represent the commonality of each item. It's false. The eigenvalue is the total commonality across all items for a single component.
ठीक है, कम्युनैलिटी नहीं है, इट इज द सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स ऑफ ए कंपोनेंट across the items. Now second is for a single component, the sum of squared component loadings across all items represent the eigenvalue for that component. For a single component, the sum of squared component loadings across all items represent the eigenvalue for that component. Yes, it's true. This is what you have seen. Then sum of eigenvalues for all components is the total variance. Sum of eigenvalues for all the components. Yes, that's also true. क्योंकि मैंने बोला हॉरिजॉन्टली अगर आइगन वैल्यूज को टोटल करोगे तो वो 8 आएगा, वो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है. जो कम्युनैलिटीज का टोटल है वो भी अगर 8 आ रहा है तो वो भी टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है. तो देखो सम ऑफ कम्युनैलिटीज डाउन द कंपोनेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज डाउन द आइटम्स. दिस इज false. Why? Because you can only sum communalities across items and sum eigenvalues across components. But if you do that, they are equal. तो आपको डाउन द, आप देखिए ना, कम्युनैलिटीज डाउन द कंपोनेंट्स, कम्युनैलिटीज डाउन द कंपोनेंट्स आप करेंगे तो आइगन वैल्यू देगा, और आइगन वैल्यूज डाउन द आइटम्स करोगे तो आपको, ये डाउन द आइटम्स करोगे अगर उनको, तो वो कम्युनैलिटी देगा. तो रिवर्स कर रखा है इन्होंने. तो क्वेश्चन जो है रिवर्स है, इसलिए ये फॉल्स है. नाउ आरती, क्या हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं 10-15 मिनट और? Sir, we can take, I guess, another 5-10 minutes. Okay, चलिए मैं जितना हो सकता है उतना करा देता हूँ, नहीं तो फिर we can leave it, we can do it in some other webinar. ठीक है. तो अभी तक जो हमने किया प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का किया हमने एक्सट्रैक्शन. अगर हम फैक्टर एनालिसिस करें यूजिंग प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, अब हम फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं और लेकिन एक्सट्रैक्शन मेथड जो है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे PAF. अब ये बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये आप देख लीजिए कि जब हमें कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए. प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस शुड बी यूज्ड व्हेन द रिसर्चर नोज which variables would load into which factors. That is, he has a kind of a clarity in the mind. उसको पता है कि, इसका मतलब है कि उसके हाथ में एक रिसर्च होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि भाई इस वेरिएबल से यही फैक्टर आते हैं. अगर उसको ये है तो वो कंपोनेंट, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाए. और इन अदर वर्ड्स इफ आई से, उसका गोल सिर्फ उन डायमेंशंस को रिड्यूस करना है, उन वेरिएबल्स को वो कंपोनेंट निकालना है जो उसको पता है, तो वो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगा ले. क्योंकि यहाँ पे assumption है कि जो सारे ऑल द वेरिएबल्स जितने भी हैं उनकी सबकी कम्युनैलिटी जो है ना वो सबकी वो 1 आने वाली है, टोटल वेरिएंस है. तो हमें फैक्टर एनालिसिस कब करना चाहिए यूजिंग प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग, वो कब लगाना चाहिए एक्सट्रैक्शन मेथड, जब रिसर्चर डजंट हैव द आइडिया व्हिच वेरिएबल्स वुड लोड इनटू व्हिच फैक्टर्स, जब मुझे नहीं पता. तो बेसिकली देखिए, अगर मैं प्रिंसिपली देखूं तो जब एक्सप्लोरेटरी, व्हेन यू कंडक्ट एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी और आपको कोई आइडिया नहीं है उस तरह का, it is better to go for principal axis factoring. So it goes with the assumption that you have not measured your set of items or variables perfectly, as there could have been some variance in these variables which would not been explained by these factors. तो इसी basis पे assumption है कि भैया मुझे नहीं पता कि क्या explain कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कुछ और भी कर रहा हो, तब भी हमारा unique variance भी आता है apart from the common variance. यहाँ पे उसको पता होता है कि वो वही explain करेगा, तो इसीलिए हम वो assumption लेते हैं कि वो जो है common variance है उसका. So therefore it is better when you are having an exploratory study, तो आप factor analysis use करें using PAF. Otherwise आपको idea है कि इनसे यही निकलता है तो हम principal component analysis use करते हैं. तो अगर मुझे principal axis factoring करना हुआ तो मैं now I am choosing principal axis factoring, and same thing I will do now. Since I know that in principal component analysis में मैंने देखा कि मेरे 2 factors आए थे, तो मैंने इसको restrict कर दिया फिर से 2 factors में. तो अगर मैं, आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे simply जाता हूँ इस अपनी फाइल पर, तो मैं एनालाइज जाऊंगा, यहाँ पर मैं डायमेंशन रिडक्शन में जाऊंगा, फैक्टर, और इसमें एक्सट्रैक्शन मेथड्स में प्रिंसिपल कंपोनेंट की जगह मैं प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग चूज कर लूंगा. नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 हैं, मैंने ये, इसको मैं रन कर दूंगा. तो अब देखो, अब कम्युनैलिटीज चेंज हो गई, कम्युनैलिटी चेंज हो गई, टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन टेबल आ गई, स्क्री प्लॉट सेम रहेगा, 2 ही फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट होंगे. अब देखो कंपोनेंट मैट्रिक्स की जगह फैक्टर मैट्रिक्स आ गए.
अब ये कंपोनेंट मैट्रिक्स नहीं है, फैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब ये फैक्टर मैट्रिक्स भी देखो वही चीज है, लेकिन इसको 0.588 का स्क्वायर करूं और -0.303 का स्क्वायर करूं, दोनों को ऐड करूं तो कम्युनैलिटी देता है मुझे वो, और वही मेरे को ये कम्युनैलिटी ये वाली दे देगा 0.437। अगर मैं इन दोनों को हॉरिजॉन्टली स्क्वायर करूं तो मुझे 0.437 दे देगा। इसी तरीके से 0.27 ये वाला मैं करूंगा तो वो मेरे को सारी कम्युनैलिटीज दे देगा, और मैं 1 का ये मैं ऐड करूंगा टोटल, तो अब आइगन वैल्यू नहीं देगा, मतलब देगा वो आइगन वैल्यू की तरह ही, लेकिन उसको आइगन वैल्यू नहीं बोलते। तो आपसे अगर इंटरव्यू में कोई पूछे कि आइगन वैल्यू किस मेथड में आती है, तो आइगन वैल्यूज कम ओनली इन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, नॉट इन प्रिंसिपल एक्सिस फैक्टरिंग और सिंपल फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस में नहीं आता, वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में आता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको हम सिंपल स्क्वायर्ड लोडिंग्स बोलेंगे, स्क्वायर्ड लोडिंग्स ऑफ ए फैक्टर अक्रॉस द आइटम्स हम बोल देंगे इसको। इसको हम आइगन वैल्यूज नहीं बोलेंगे, दो इट इज लाइक सेम, वो उसी तरीके से है जैसे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में था, लेकिन हम इसको नहीं बोलते हैं। देखिए अब ये कम्युनैलिटीज जो हैं, अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन जो ये 0.437 हुआ है, ये वही हुआ है जो स्क्वायरिंग की है मैंने दोनों कंपोनेंट्स की एक आइटम के आगे, तो ये 0.437 ये इसकी कम्युनैलिटीज हैं ये जो आ रही हैं, क्योंकि ये मान के चल रहा है कि अच्छा इनिशियल में देखो 0.293 1 नहीं आ रहा इनिशियल में, क्यों नहीं आ रहा इनिशियल में 1, जबकि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में 1 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे assumption है कि ये कुछ और किसी और से भी एक्सप्लेन होता है। देयर इज अ यूनिक वेरिएंस इन दीज वेरिएबल्स, इन वेरिएबल्स में कोई यूनिक वेरिएंस भी है। So the most striking difference between this commonalities table and the one from the PCA is that the initial extraction is no longer 1. Recall that for PCA we assume that total variance is completely taken up by the common variance or commonality, and therefore we pick 1 as our best initial guess. Now what principal axis factoring does is, instead of guessing 1 as the initial commonality, it chooses the squared multiple correlation coefficient R square. जो मैं पहले बोल रहा था R square, यहाँ समझ आएगा आपको R square क्या है। To see this in action, item 1 run a regression, linear regression, where item 1 is dependent variable and item 2 to 8 are independent. मतलब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ ये रिग्रेशन लीनियर में गया, तो मैं पहले कोई काम करता हूँ डिपेंडेंट बना देता हूँ और बाकी सबको मैं इंडिपेंडेंट बता देता हूँ। तो ये मैंने बना लिया, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब ये देखिए ये जो टेबल आई है मॉडल समरी 0.293 R स्क्वायर, ये जो 0.293 है यही है वो, ये देखो इनिशियल जो है वो 0.293 यही है वो, लेकिन ये 293 ये क्या, ये बेसिकली प्रेडिक्टर है, ये बताता है कि कितना एक्सप्लेन कर रहा है इंडिपेंडेंट। पहले वाले को हमने इंडिपेंडेंट माना, बाकियों को पहले वाले को डिपेंडेंट माना, बाकियों को इंडिपेंडेंट माना, तो वो बता रहा है कि कितना एक्सप्लेन कर रहा है। अगर ऐसे करें हम कि फिर दूसरे वाले को इंडिपेंडेंट माने बाकी को डिपेंडेंट माने, तो इस तरह से करते 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 हमारे को सबका R स्क्वायर बता देगा। तो ये हमारे को ये जो कम्युनैलिटीज ने दिया ये सारा 0.293 0.106 ये सारा R स्क्वायर दे दिया। ये जो R स्क्वायर है यही है बेसिकली रिग्रेशन का, जो हम हमारे को फैक्टर एनालिसिस अपने आप करके दे रहा है, जबकि हमें रिग्रेशन में एक एक जो लोग रिग्रेशन यूज करते हैं उनको एक एक करके यूज करना पड़ता, यहाँ पे सारा दे दिया। और ये जो कम्युनैलिटी है ये क्या है 0.3437 जो है ये एक्सट्रैक्टेड है। देखिए इसकी जो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड है, पहला वाला तो सेम है जो उसमें था, जो हमारे पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में था, लेकिन एक्सट्रैक्शन देखो अलग हो गया। अब एक्सट्रैक्शन हमारा 2.517 हो गया, क्यों? क्योंकि मेरी लोडिंग अलग हो गई, मेरी जब फैक्टर लोडिंग अलग हो गई तो मेरी स्क्वायरिंग जब मैं करूंगा, मतलब ये जो मैं स्क्वायरिंग करूंगा इस वाले की 0.293 ये जो एक्सट्रैक्शन वाले की ये जो मेरा कंपोनेंट फैक्टर मैट्रिक्स आया होगा, ये जो मेरा फैक्टर मैट्रिक्स है, तो देखो 0.588 माइनस 0.27227 माइनस 0.57 इनकी मैं स्क्वायर अगर लोडिंग करूंगा वर्टिकली ऐड करूंगा तो वो मेरा वही वो 2 पॉइंट जो मैंने बताया, ये देखो 2.51 मैंने इन सब का स्क्वायर किया, ये 2.51 आया। ये जो 2.51 है ये कहाँ है, ये रहा ये 2.51, देखिए ये जो है ये 2.51 है, दूसरे का 0.499 है,
तो ये बेसिकली मेरे एक्सट्रैक्शन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स है. अच्छा, लेट्स यू कैन सी दिस कि स्क्री प्लॉट तो सेम ही होता है. इन थ्योरी when would the percent of variance in the initial column ever equal to extraction column? When there is no unique variance. क्यों? जब इक्वल कब होगा? इनिशियल कॉलम के इक्वल एक्सट्रैक्शन कॉलम की जब कोई वेरिएंस नहीं होगा. जैसे आपने बताया, जब हम अज्यूम करते हैं कि कोई यूनिक वेरिएंस नहीं है, सारा का सारा कॉमन वेरिएंस है. इन SPSS when you use principal axis factor method in the scree plot uses the final factor analysis solution to the plot the eigenvalues. So that is false because it uses the initial PCA solution and the eigenvalues assume no unique variance. अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आप टेबल देख लीजिए, लास्ट है बस, कि चाहे आप फैक्टर एनालिसिस यूज करें, चाहे फैक्टर एनालिसिस, चाहे कंपोनेंट एनालिसिस यूज करें, अगर आप उनका स्क्वायर करते हैं ईच एलिमेंट का, तो वो स्क्वायर हो गया. सब सारे जैसे कंपोनेंट मैट्रिक्स आया है, फैक्टर मैट्रिक्स आया है, सबका स्क्वायर कर दीजिए, उन सारे कोरिलेशंस का स्क्वायर कर दीजिए, वो स्क्वायर्ड लोडिंग्स होंगी. अगर आप उनको डाउन करते हैं, मतलब कंपोनेंट्स या फैक्टर्स के नीचे ऐड करते हैं, तो आपको आइगन वैल्यू देगा. और अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐड करते हैं तो आपको कम्युनैलिटीज देगा. और इन दोनों को जो ऐड कर देंगे अगर आप, तो वो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन देगा. आई रिपीट कि ये आप स्क्वायरिंग करिए कंपोनेंट मैट्रिक्स की या फैक्टर मैट्रिक्स की, उनको अगर स्क्वायरिंग करके आप ऐड करेंगे वर्टिकली, आपको आइगन वैल्यूज आएंगी या सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स आएंगी. याद रखना, आइगन वैल्यूज वी यूज ओनली इन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स वी यूज इन फैक्टर एनालिसिस. उनको हम आइगन वैल्यूज नहीं बोलते हैं, दो दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग. और लेकिन कम्युनैलिटीज में ऐसा इश्यू नहीं है. हम पीसीए और फैक्टर एनालिसिस दोनों में जो हम हॉरिजॉन्टली वो ऐड करते हैं उनको कम्युनैलिटीज कहते हैं, और टोटल जो है वो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन्ड होता है. So this is what I have planned for today, this webinar. So I think this is what you should have. I hope that you have got the brief idea about what factor analysis is and what commonality is, what eigenvalue is, and how you extract basically the factors. Thank you, Aarti. Thank you, sir, for such an insightful and enlightening session. Now, I would like to request Ms. Chandni Aswal, our session moderator, to kindly begin with question and answer session. We also request all the participants to get ready for virtual group photo as well as the link of feedback form after vote of thanks by our convener, Ms. Aarti Saini ma'am. Ms. Chandni ma'am. Thank you, sir, for such an enlightening session. So we start with the question answer round. So the first question is asked by Dr. Kavita Arora. She wants to know, can we do ADF tests in an SPSS? देखिए, ये सारे SPSS में ये ना करें, इसके लिए और एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं. तो SPSS जो है बेसिकली उन चीज़ों में ज़्यादा बेटर नहीं मिलेगा. तो कुछ हायर वर्जन अगर आए हों तो उसमें हो सकता है ये हो, लेकिन अभी जो मेरे पास जो वर्जन था, मेरे पास 20 था, उसमें तो नहीं है. Okay, sir. So next question is asked by Mandeep Kaur. The question is, how will we decide that how many factors can be extracted from the data? देखो, इसके लिए सबसे बेटर तरीका ये होता है कि आप को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये मेरे फैक्टर्स जो, ये मेरे जो वेरिएबल्स हैं, ये क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर आप मान लीजिए आपका 120 का क्वेश्चनेयर है, आप 120 के 120 रन कर देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं इधर उधर मिक्सअप हो जाएंगे. तो ज़्यादा बेटर है कि आप को जो आइडिया है कि हाँ मेरे ये 10 आइटम है, मेरे 15 आइटम है, 15 में से ये 2 हैं या 10, ज़्यादा आइटम्स को करोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, वो ज़्यादा एक में जाके लोड करेगा. तो ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं होता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द रिसर्चर हाउ ही हैज प्लान्ड हिज स्टडी, एंड उसको एक फेयर आइडिया होता है कि मेरे ये जो आइटम्स हैं, मैंने जब वो क्वेश्चन जब बनाए थे, क्या सोच के बनाए थे, क्या वो कैप्चर करने के लिए बनाए थे. तो उनको एक साथ रन करे और उनको एक्सट्रैक्ट करे. एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उनको वो एक कंस्ट्रक्ट, फिर वो CFA में ले जाए, वहां से वो उनको पिक करेगा. Okay, sir. The another question is asked by Hani Gupta. He wants to know the second question of first quiz. Please explain. क्या दोबारा?
Second question of first quiz. Please explain. Second question of first quiz. Yes, sir. You have to refer the quiz. In question of first quiz, let me see it. Second question. ढूंढना पड़ेगा, बता ही दे, वैसे ही बता देते क्या है. अच्छा ये द सम ऑफ, नहीं ये वाला तो अलग है, ये तो अभी हुआ ना, ये तो अभी हुआ. We can request Hani Gupta to write the question in the chat box. क्वेश्चन बता ही दो क्या था. So we can ask him to write it in the chat box. Meanwhile, we move to the next question. It is asked by Sadhna Jain. She wants to know, does high correlation means that the factor is confirmed factor? हाई कोरिलेशन का मतलब ये है कि वो जो आइटम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आप देखिए कि फैक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. मेरा कहने का मतलब है अगर 5 आइटम्स में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है, हाई कोरिलेशन है, तो अगर मैं 3 भी रखूंगा तब भी वो 2 हटा भी दूंगा तब भी वो सेम ही बात बोलेंगे. तो मल्टी कोलिनियरिटी बताता है वो. नेक्स्ट Hello. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए. Sir, both KMA and Bartley condition must be satisfied to conduct factor analysis. ये देखिए बार्टलेट तो वैसे ही हो जाएगा, केएमओ बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो डेटा एडिक्वेट नहीं है तो फिर आपका, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बात सोचिए, कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का आपने सैंपल उठाया, जैसे हम चावल है, सैंपलिंग का पर्पस क्या होता है, अगर हमने चावल हमारे गर्म मतलब बन गए हैं तो कैसे करते हैं, थोड़े से चावल उठा के देखते हैं ना तो वो रिप्रेजेंट करता है. तो उसमें अगर ये प्रॉब्लम है कि अगर आप प्रॉपर सैंपल नहीं होगा तो हो सकता है आपने कोने से एक चावल उठाया, वो तो पक गया बाकी नहीं पके, है ना. तो इसलिए प्रॉपर सैंपलिंग इतनी होनी चाहिए कि वो रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को, तो केएमओ वही बताता है. तो जब भी केएमओ होगा, बार्टलेट टेस्ट तो एक रेयर केस में ऐसा हो सकता है, मैंने बताया ना कि अगर कोरिलेशन 0 है बाकी आइटम्स का, तो कोरिलेशन 0 है तो फिर तो वो बताएगा कि इसका मतलब ये तो रन नहीं होगा, फैक्टर आपके निकलेंगे इन उसमें से. Yes, sir. So they have Thank to be you. satisfied. They have to be satisfied. Okay, sir. The question asked by the Hani Gupta is that sum of squared eigenvalues is the proportion of variance under TBA. Why is it false? क्या बोल रहे, दोबारा से बोलना. Sum of squared eigenvalues is the proportion of variance under TBA. Why is it false? सम स्क्वायर्ड आइगन वैल्यूज का स्क्वायर्ड नहीं होता ना. आइगन वैल्यू जो वो निकालते हैं, हाउ वी फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यूज देखिए, सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स, आइगन वैल्यूज का कभी स्क्वायर नहीं होता. जो आइगन वैल्यू खुद कैसे निकलती हैं, आइगन वैल्यूज निकलती हैं जो सम ऑफ स्क्वायर्ड लोडिंग्स ऑफ ए कंपोनेंट अक्रॉस द आइटम्स. और जब हम टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं तो टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन में सारी आइगन वैल्यूज का जो टोटल है वो टोटल वेरिएंस होता है. तो स्क्वायर क्यों कर रहे हो आप आइगन वैल्यू का? अगर 3.057 आइगन वैल्यू थी और टोटल वेरिएंस एक्सप्लेन 8 है, तो 3 डिवाइड बाय 8 करो ना, तो आपको प्रोपोर्शन आ जाएगा वेरिएंस का. आप उसको आइगन वैल्यू को स्क्वायर करोगे तो प्रॉब्लम हो गया ना. तो बिकॉज ऑफ स्क्वायर्ड वर्ड दिस इज फॉल्स. Okay, so the last question is asked by the Rima Dehel. She wants to know, in PCA, when there is a unique variance, then why is explained variance not higher than PAC? एक मिनट, चैट में डाला है क्या मैंने क्वेश्चन? हाँ जी सर. In PCA, when there is no unique variance, then why
is why is explained variance not higher than PAC प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग? मेरे ख्याल से PA बोलना चाह रहे हैं शायद ये। देखिए एक बात सुनिए, जब वेरिएंस क्या है, 8 आइटम्स हैं, 8 कंपोनेंट्स को ही मतलब 8 कंपोनेंट से एक्सप्लेन हो रहे हैं। अगर मैं बोलूं इससे अच्छा एक चीज और देखना कि अगर हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में 8 वेरिएबल से 8 फैक्टर्स को 8 कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है, अगर आप यही चीज फैक्टर एनालिसिस में करने चाहोगे ना, आपको 8 का 8 एक्सट्रैक्ट नहीं करने देगा, एक कम कराएगा, वो 7 कराएगा आपको, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि कुछ यूनिक वेरिएंस है कि सारा का सारा इसमें नहीं कर रहा है, कुछ और भी वो कर रहा है, तो इसीलिए वो ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम रहेगा। प्रिंसिपल 8 कंपोनेंट 8 वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, 8 से तो ज्यादा करेंगे नहीं, तो वो मान के चल रहा है कि भाई दुनिया में और कुछ है नहीं, ये इन्हीं को कर रहा है। लेकिन हमारे प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग में हमारा जो टोटल वेरिएंस जो ये शायद एक आपने वो देखा होगा कम्युनैलिटीज में ये हो रही है प्रॉब्लम, जो लोगों को समझने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है कि जो कम्युनैलिटीज हमारी पीसीए में आती है तो इनिशियल आइगन वैल्यू जो आती है वो 1 1, जो इनिशियल कम्युनैलिटी आती है 1 1 आती है और एक्सट्रैक्टेड उससे कम आती है। लेकिन ऐसा उसमें नहीं होगा, प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टरिंग में नहीं होगा, उसमें इनिशियल जो है वो ज्यादा भी हो सकती है एक्सट्रैक्टेड से, क्योंकि हमें नहीं पता यूनिक वेरिएंस है उसका, वो कहीं और से भी एक्सप्लेन हो रहा हो तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। Sir, thank you so much. Here we end with the question answer session. So over to the host. With that, we come to the end of Q&A session. We'll be sharing the feedback form after Aarti ma'am's vote of thanks. Now, I would like to request Ms. Aarti Saini, Convener, Commerce Association, to present the vote of thanks. Thank you, Bhuvishya. Respected Principal Sir, Dr. Anil Sadana, Teacher in charge, Dr. Kadna Gupta, Moderator of the day, Chandni Aswal, Speaker of the day, Dr. Arun Atri, Student Coordinators, Anwar, Dakshesh, Bhuvishya, Arpita, Tushar, and Kashish, and my dear colleagues. I, Aarti Saini, on behalf of Department of Commerce, would like to take this opportunity to thank you all and us, and that take us the way to conduct the series of webinar. I'm sure that today's webinar is able to clarify lots of doubt of yours, and definitely you understood the concept of factor analysis. I thank Dr. Ari for the same. Because of his quiz and question and answer, definitely lots of small queries must have been answered. We understand that it is not easy to understand the analysis in 1 hour webinar. It definitely requires a lot of efforts and hard work. So we are trying to build a foundation and have planned a series of webinars to cater the need of different needs of research. You all will soon receive a link for the registration of upcoming webinars. And again, I thank you all for showing trust in us and connected with us and being connected with us. And I'm also happy to share that there are approximately 50-60 participants who are continuously connected with us since the first webinar. So this actually motivates us a lot. With this, I, Aarti Saini, मैं बिजी हूँ यहाँ जरा, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ 15 मिनट बाद। Okay, thank you so much. Thank you, ma'am.